Sure, sure. Yes. So, very good morning to all of you. Um, I welcome you all, like in the CRT program, Campus Recruitment Training Program, conducted by Training and Placement Department, Rabindranath Tagore University. We all know that CRT program is the important component for the training and placement, and it is important for campus placement also. So this is the first day of our training, and our today's topic is resume writing, and the session timing is from 11 a.m. to 1 p.m. Our today's guest is Mr. Manisha Anandji. So I welcome Manisha ji on this platform. Welcome you, ma'am. Thank you, sir. Thank Yes. So before I start and like I hand over the platform to Manisha ji, I will share her profile with all of you. Manisha ji is having around 17 plus years of experience in mentoring and training of students and executive for competitive exam and employability, corporate and academic trainer with cross-functional expertise in business management, content designing, development and management, academic planning and execution, marketing and promotion, human resources, media and client management, public relation, brand building and management. She is a career counselor. She's also human resource director for a company who bid for government tendering for highway projects in Madhya Pradesh. So I welcome you, ma'am, on this platform, and I request please start with the session. So over to you, ma'am. Okay, thank you so much. Thanks a lot for providing me this platform and opportunity to interact with the students. Good morning, all of you. Okay, we teachers are so used to this good morning entering in the class, but in this platform, we have to just see that, okay, fine, the students are there. I would request all of you to be attentive because I'll be discussing the pointers with you people. The topic today is resume writing. Resume, CV, आपका biodata. Abhishek sir, what should be the medium of the communication? It should be English. You can use both English and Hindi, like because we have few candidates from background also. Okay, thank you so much. So resume writing, this is one of the most important tool. Why this is one of the most important tool is because whenever मैं आपको बहुत एक simple इसका example देती हूँ. जैसे suppose you want to watch a movie, but you don't know whether the movie is good or not. So what you do? You watch its trailer. So if you find the trailer interesting, or you find the trailer little worthwhile, if you like the trailer, only then you would like to go for a movie. Similarly, your resume, your CV is the trailer of your candidature. Whenever आप जब भी किसी इंटरव्यूअर के पास जाते हैं किसी भी जॉब के लिए या हायर स्टडीज के लिए, you require a well defined organized resume, your CV, which we will discuss today in the session step by step. मैं आपको I'll give you all the pointers, do's and don'ts. You take brief notes of it, and I would suggest you people, since it's a training program, it's for a few hours. I will be taking more sessions. So my suggestion to you people is, after the orientation and tips from today's session, make CV of your own. That will help you. That will be the real learning from the session. So resume is the biggest tool. It acts like a containment area. That means आप एक interviewer को एक boundary दे देते हैं. It acts like a boundary from which he or she can ask questions because you are giving your details to that person, right? You are telling about your contact information, your educational qualification, your professional experience, your skills, your strengths, your interest areas, क्या क्या आपने activities करी हैं, क्या आपकी hobbies हैं, ये सारी चीजें उस पर लिखी होती हैं. I will tell you everything step by step. मैं भी आपको step by step सारे pointers बताऊंगी that where you should write and what you should write. So the point is कि आप अपनी personality के बारे में उनको बता रहे होते हैं वहाँ पे. आप अपने कैंडिडेचर के बारे में बता रहे होते हैं. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या आपने क्या पढ़ाई की है. अगर आपको कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर फ्रेशर्स हियर, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग्स की होती हैं, इंटर्नशिप्स की होती हैं. नहीं की हैं तो जरूर कीजिए. प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, आपके कुछ स्किल्स होते हैं जो आपने एक्टिविटीज की होती हैं कॉलेजेस में, या अदर वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस होते हैं एनजीओ के साथ या किसी अन्य संस्था के साथ आप जुड़े हैं, क्योंकि वो भी जरूर साइड बाय साइड एक ओवरऑल वेल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए आपको करना चाहिए. तो जब वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक इंटरव्यूअर देखता है, तो ही गेट्स द आइडिया दैट व्हाट शुड आई आस्क,
from this candidate. Trust me, this is very very important. आपके training and placement sir और आपके जो faculty members हैं वो भी इस बात से agree करेंगे. As an interviewer, please understand this session. Please understand this from interviewers point of view, क्योंकि उनके पास भी चैलेंज होता है कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे. इमेजिन कीजिए कोई नया कैंडिडेट आपके पास आया है, आपको भी जज करना है कि वेदर दिस पर्सन इज ऑफ सम कैपेबिलिटी और नॉट, इसमें कुछ एबिलिटी है कि नहीं, मैं इस पर्सन को जॉब के लिए हायर कर सकता हूँ कि नहीं. तो आपके पास भी एक चैलेंज होगा कि मैं क्या ऐसे पूछूं. सो द रेज्यूमे गिव्स द स्ट्रक्चर, द रेज्यूमे मेक्स अ बाउंड्री जिसमें से वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं. योर इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन योर रेज्यूमे. आपके रेज्यूमे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस कहाँ जाएंगे. आप उसको एक कंटेनमेंट एरिया में बांध देते हैं, ठीक है. और जनरली फिर इंटरव्यूज जो होते हैं कॉमन क्वेश्चंस आपसे, जो आपकी इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर, रिमेंबर दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू विल गिव in resume, 90% of the times, if not 100%, 90% of the times आपके resume में से ही questions पूछे जाते हैं. So this is the importance of a good resume. If your resume is not impressive, not structured and organized, आपका first impression, your first impression will be bad. It won't be that good. Because if a person is not taking interest, or if a person is not taking pains in making the resume, that means that person is not serious for the job. Am I right? Achha, let me, before proceeding further, let me ask you one question. Till now, whatever I'm speaking, is it good? Like whether you are able to understand, whether the speed is okay? You can write in the chat box if you feel like. Any doubts? Or if you have any doubts, you can write in the chat box, or you can unmute and ask. Because Manisha ji, chat box is disabled right now. So okay, like this meeting, this is in the meeting form, so student can directly interact with you. Okay, great. So till now, please, a couple of you can unmute and tell me, is the speed good? मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रही हूँ. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, Pita. Hi, Nancy this side. Ma'am, the voice is clear, the speed is good, it's great. Okay, chalo. Thank you so much. You're And if you have any doubt, you can unmute and ask. Though we will take questions after this session also in Open House, but still, if you feel that I have discussed some point and it's not clear to you, you people are free. Please feel to unmute your mic and discuss, because that will be more impactful. That will be beneficial for you people. So I told you the importance of resume, importance of structured and organized resume, impressive resume. It gives the boundary to interviewer. देखिए, एक तो ये है कि वो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेंगे वो लिखा होता है. दूसरा ये होता है that if they won't get the structure, they can ask any question. They can ask you anything under the sky. They'll ask you anything about the current awareness or what's going on around you. But if the resume is there in front of them, impressive resume, proper structured pointers about your strengths and hobbies and interests and activities or achievements or internship, they'll ask you about your internship. They'll definitely ask you about your educational qualification. Achha, this session covers a lot of part of interview preparation also, because resume writing and interview goes hand in hand. Though we have planned with Abhishek sir to conduct a session on interview preparation as well, but a lot of part will be covered. A lot of part of interviews will also be covered during this session. So we'll proceed further. I will share the PPT towards the end of the session, not now, because else students get distracted. You can ask questions directly. Okay. Now, you people are freshers, so your resume should not be more than 2 pages. Second thing, name and contact information, name and your contact details. You are supposed to write the name, clear font. Contact information is your email ID and your phone number. Now, the input here is your email ID should be formal. For example, if I'm Manisha Anand, so manisha.anand@gmail.com. If the username is not the manisha.anand@2006@gmail.com, or your some numerical number along with your name, formal email ID. It should not be like rockystar@yahoo.com or angelgirl @ like, I have seen lots and lots of funny, no offenses to the girls and boys out there, but at times they do that. Please make sure that your email ID should be formal. If you don't have one, please make one.
and check it regularly. If you have applied, if you have written that email ID in your resume, and if you have applied somewhere, please make sure to configure that email ID in the gadget which you use regularly and keep on checking it. Is it clear? The email ID should be formal. Second point about your phone number. Generally, students, they tend to change their numbers regularly. Like for example, I have my cell number which I took in 2006. Since then, since last 14 years, I have that same cell number. And I know Abhishek sir since last 10 years. So his number is also same and my number is also same. So we could connect for the session, right? If I'll keep on changing my number, it would be very difficult for people to approach to me if I'm a professional. So make sure whatever phone number you are writing in your resume, you should have that number, that SIM with you for at least 1 year. At least 1 year. Your one number, if you're in a habit of changing the numbers, please make sure that your one number should be stable, permanent. And nowadays, if you want to change the user from Airtel or Vodafone or whatever, you just need to port. You do not need to change your number. So your contact number should be permanent. Your email ID should be formal. Next comes the career objective. Now, career objective, at times they require career objective, at times they don't require career objective. But please make sure whenever you write career objective, do not copy paste it from the net. Generally, what I have seen, I don't know, I've seen thousands and thousands of resumes, taken real life interviews. That's why I can tell you, whatever career objective you are writing, you should be able to explain it to the interviewer, because that is your career objective. आप जो career objective लिख रहे हैं resume में, वो आपका खुद का होना चाहिए. क्योंकि जब भी मैं आपको एक common example देती हूँ, when I am the interviewer, और एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बहुत ही भारी भरकम किसी स्टूडेंट ने करियर ऑब्जेक्टिव ला करके लिख के दिया है, और मुझे उसकी पर्सनालिटी से देख करके लग रहा है कि वो ये उसने खुद नहीं लिखा है. व्हाट आई डू इज, मेरा नॉर्मल क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव. अगर उसने सपोज रट भी लिया, सुना भी दिया, तो माय नेक्स्ट विल बी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, जो आपने लिखा है. वहीं आधे स्टूडेंट्स जो हैं क्रम्बल कर जाते हैं, दे फेल देयर ओनली. तो इससे क्या पता चलता है दैट आपने जो लिखा है आपको ही नहीं पता है. It gives a very bad impression. So students, मेरा बहुत sincere suggestion है आप लोगों को कि yes, नेट पे, इंटरनेट पे आप देखिए, रेफरेंसेस लीजिए कि करियर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है. 2 लाइन्स में, not more than that. But please make sure उसको कॉपी पेस्ट मत कीजिए. Write it in your own language. And your language should be correct. वो हम आगे डिस्कस करेंगे that there should not be any mistake. करियर ऑब्जेक्ट बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ऑफ 3-4 sentences. 1 sentence, and that too of 2.5 lines, not more than that. So career objective clear, everyone? Yes, ma'am. Anyone? Yes, Any ma'am. doubt? Yes, ma'am. Now, मैं आपको पहले भी जनरल पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, फिर हम डिटेल में जाएंगे. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टिल द टाइम, जब तक आपसे नहीं पूछा जाए, जितने भी सेल्फ एटेस्टेशन हैं, वेरिफिकेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर ऑब्जेक्टिव्स आप लिखते हैं, सॉरी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ रेज्यूमे आप लिखते हैं, टुवर्ड्स द एंड, लास्ट में, अगर आपसे रिकमेंडेशन नहीं पूछी है. रिकमेंडेशन क्या होती है? सपोज आप कहीं फॉरेन, आप अभी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, सपोज आप बीबीए कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एंड यू वांट टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है. सॉरी, कॉल आ गया था. आई होप आई एम देयर ना. सो उसमें आपको जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या कई बार एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो रिकमेंडेशंस मांगते हैं. मतलब आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या आपके जो एचओडीज हैं जहां पढ़ रहे हैं, कि दे उनके रिकमेंडेशंस कि यस, दिस स्टूडेंट इज सिंसियर, या दिस स्टूडेंट इज, वी नो दिस स्टूडेंट. So till the time they don't ask you for recommendations, no need to write the recommendation. No need to self-attest it that I hereby declare this and that, until and unless it's asked. अगर आपसे पूछा है तो ही आप उसको करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, सपोज अभी जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आपने पीजी भी कर लिया,
या पीजी नहीं भी किया, अपने कॉलेज आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन आप अपने अपने 5th ग्रेड में, 6th ग्रेड में, 7th ग्रेड में आप बहुत अच्छा खेलते थे, डांस करते थे, या आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, रेसेस लगाते थे, आपने उसमें स्कूल लेवल पे बहुत सारे प्राइजेस जीते, बट कब तक? जस्ट 5th 6th 7th 8th तक। तो वो आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो आप अपने रेज्यूमे में मेंशन नहीं करेंगे। अगर आपने वो आगे कंटिन्यू किया है 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, एक आध साल का गैप है, इट्स फाइन, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं सिंस दिस टाइम। लेकिन सपोज आपने कोई एक्टिविटी सिर्फ बचपन में ही की है 5th 6th 7th में, एंड यू हैव नॉट कंटिन्यूड इट, परस्यूड इट फर्दर आफ्टर योर 8th ग्रेड, प्लीज डू नॉट मेंशन इट इन योर सीवी। रेज्यूमे मेंशन मत कीजिए, 8th 9th ऑनवर्ड्स मेंशन कीजिए, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, whether it's something related to cultural activities, music, dance, drama, English, debates, discussions, ये सब आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आएगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसमें लिखेंगे अपने रेज्यूमे में। देन अगेन, जैसे अचीवमेंट्स हैं, क्रेडिशंस हैं, अगर वो नेशनल लेवल में आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है, स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया है, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता है, स्कूल लेवल है, या इंटर स्कूल है, इंटर कॉलेज है, that makes impact, whether it's in field of academics, whether it's in field of sports, or whether it's in the field of any extracurricular or cultural, या आपका volunteer experience activities है। then अगर आप कोई volunteer activities करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अवेयर एनवायरमेंट को लेकर के बहुत अवेयरनेस है, लोग पौधे लगाते हैं, सैपलिंग प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती हैं, ऐसे ड्राइव्स में जरूर पार्टिसिपेट करें। Please participate in such kind of activities. Get yourself associated with some kind of NGOs जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं या उनके लिए कुछ बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। Yesterday only couple of my ex students they came and gave me the box for this उपहार पिटारा की, छोटे बच्चे हैं जिनकी यूज्ड नोटबुक्स हैं, वो उसमें आप मैम प्लीज कलेक्ट कीजिए, we'll get it recycled from agency, they have a tie up from kabadi wala, e-kabadi wala, and they'll give them the new notebooks. Why I'm giving you this example? Because ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, they involved हैं, because अगर आप कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो आप रिज्यूमे में लिखेंगे क्या? तो सच काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू गेट अस, बहुत सारे एनजीओज हैं हमारे भोपाल में, उनके साथ एसोसिएट हो जाइए। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आई कैन शेयर इट, मैं सर को भी बता दूंगी, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। देन यू कैन पार्टी, अभी तो देखिए कॉलेज एक्टिविटीज दे आर एट हॉल्ट, अभी कॉलेज एक्टिविटीज हो नहीं रही है, बट नेक्स्ट ईयर वेन एवर देयर विल बी द कॉलेज एक्टिविटीज, RNTU भी बहुत सारी कॉलेज एक्टिविटीज कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी, तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। एंड इंटर कॉलेज के भी जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो नोटिस बोर्ड पे होते हैं, वो चेक कीजिए नेक्स्ट ईयर, दिस आई एम टेलिंग यू फॉर नेक्स्ट ईयर। बट अभी भी काफी कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही हैं, कीप अ ट्रैक ऑफ इट, because if you will not participate in the activities, what will you write in your resume? Volunteer experience में क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या लिखेंगे आप, वो जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो प्लीज डू राइट दैट। फेयर इनफ। नेक्स्ट हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेशर है तो उसका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। आई टोल्ड यू अबाउट नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि फोन एंड ईमेल आईडी, देन फॉलोड बाय योर करियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप सबसे पहले मेंशन करेंगे, इट कैन बी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑल्सो और इट कैन बी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑल्सो। आप पहले 10th, so sorry, fine, sorry I got the call. So first आप लिखेंगे 10th, then 12th and then आपका ग्रेजुएशन। आप पहले ग्रेजुएशन 12th और 10th भी लिख सकते हैं, बट व्हाट और इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, या तो उसको एक टेबुलर फॉर्म में आप बना लेंगे, या आप अगर सेंटेंस फॉर्मेट में भी लिखते हैं तो प्लीज मेक श्योर कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, आपकी डिग्री का नाम, सबसे पहले आपकी डिग्री का नाम, देन सब्जेक्ट, फिर किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है, एंड देन उसके बाद आप लिखेंगे उसमें वहां पे आपके मार्क्स। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, जस्ट इन केस आपके मार्क्स अगर अच्छे नहीं है, या 10th में आपका थोड़ा अच्छा था या 12th में आपका कम हुआ, फ्लक्चुएशन है, तो आप मार्क्स अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप लिखेंगे तो नहीं भी लिखेंगे तो देखिए आपको अपनी डिग्रीज और मार्कशीट्स पूरा फोल्डर आपको प्रिपेयर करके इंटरव्यू में लेके जाना होगा। सो दे कैन आस्क यू कि आपने इसमें मार्क्स नहीं लिखे, लेकिन हो सकता है
अगर आपके मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम है, कम ज्यादा है, बहुत ही कम है, कभी एक बार ज्यादा हुए हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं मार्क्स लिखना, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर मिस कर जाए आपसे मार्क्स पूछना। लेकिन अगर सामने ही मार्क्स लिखे होंगे, ऊपर नीचे होंगे, तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू द क्वेश्चन, so you can take that chance. But please make sure never ever write anything that is incorrect in your resume. No false information should be given in the resume. Am I clear on it, everyone? Yes, Did you ma'am. hear this? This is something very crucial, very, very crucial. Because those people are experienced people. वो जो कहावत होती है ना कि धूप में बैठ के बाल सफेद नहीं किए हैं, बाल सफेद कैसे होते हैं? उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। तो जब एक कैंडिडेट वॉक इन करता है, सामने आके बैठता है, उनकी बॉडी, कल मैं बॉडी लैंग्वेज का सेशन लूंगी, आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, अगेन 11 to 1, और कल बहुत हेवीली पीपीटी बेस्ड होगा, क्योंकि मैं आपको पीपीटी के थ्रू ही बॉडी पॉस्चर्स बता पाऊंगी, अदरवाइज जब रियल सेशन होता है तो मैं खुद ही बॉडी पॉस्चर्स बताती हूँ। सो जिस तरीके से वॉक इन करते हैं, वो अंदर आते हैं, द वे दे स्टैंड, जिस तरीके से अपना फोल्डर लेके आते हैं, आई कांटेक्ट होता है, स्माइल होता है, जैसे आके बैठते हैं, बात करते हैं, ट्रस्ट मी, रेज्यूमे को देख करके वो समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? बिकॉज उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमेज, लैक्स ऑफ रेज्यूमेज ऑलरेडी देखे हुए होते हैं, ऑलरेडी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल से उन्होंने इंटरेक्ट किया होता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, राइट? सो अगर आप कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन उसमें कोट करेंगे, तो 2-3 क्वेश्चंस के बाद वो बहुत इजीली डिटरमाइन करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो या आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन कोट की है उसमें, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, राइट? और अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन उसमें क्लेम की है, तो देन आपकी पूरी कैरेक्टर, आपकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा, यू विल नेवर बी सिलेक्टेड, दैट्स फॉर श्योर। आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपको सपोज कोई चीज आपने नहीं आती है, आपने बोला सॉरी आई डोंट नो इंटरव्यू में, इट्स फाइन, बिकॉज यू आर नॉट एनसाइक्लोपीडिया और गूगल। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको नहीं मालूम होगी। आप लोग यंगस्टर्स हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कोई चीज आप लोग मुझसे पूछेंगे, तो मे बी, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी कि कंप्यूटर रिलेटेड एंड स्टफ मुझे नहीं पता होगा, ठीक है? सो बट लेकिन जो आपने लिखा है इंफॉर्मेशन रेज्यूमे में, वो आपको पता होनी चाहिए। So please make sure that you never ever put any false information or fake information or any incorrect information in the resume. जो चीज आपने की है, जो भी activity, whatever you have performed, only write only those activities in it. Never ever claim anything which you cannot do. Okay, fine. I've taken some time in it. So educational information पे हम लोग वापस आते हैं, मार्क्स पे हम बात कर रहे थे। सो आई टोल्ड यू, एक टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं आप, उसमें काफी क्लैरिटी से आ जाता है। यू विल राइट द नेम ऑफ योर डिग्री जो आपने की है, आप अपने सब्जेक्ट्स लिखेंगे, ईयर ऑफ पास आउट जरूर लिखेंगे आप उसमें, पासिंग ईयर जरूर लिखेंगे, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने किया वो लिखेंगे, और लास्ट में अगर आपके मार्क्स फर्स्ट डिविजन है, स्टडी है, ठीक है, तो आप लिख दीजिए उसमें। उसके बाद आता है नीचे कॉलम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। बट सिंस आप लोग ऑल ऑफ यू आर यस, ऑल ऑफ यू आर फ्रेशर्स, सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं इसमें, तो फिर मैं उस हिसाब से yes, they all are freshers. Yes, ma'am. फ्रेशर्स, तो उसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का कॉलम ही आप नहीं लिखेंगे। ये मैंने पीपीटी में कवर भी किया है, दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट जो सब हेडिंग्स में आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं है, सपोज आपके पास स्पोर्ट्स में कुछ लिखने के लिए नहीं है, सपोज आपके पास अचीवमेंट्स में कुछ नहीं, तो वो कॉलम ही, आप वो सब हेडिंग ही नहीं लिखेंगे। नेवर डू दैट यू रोट अ सब हेडिंग और उसके नीचे फिर आपने उसको ब्लैंक छोड़ा है। ये कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि वो फॉर्मेट उनको एज इट इज नेट से फॉर्मेट मिला, राइट, इंटरनेट से दे गॉट द फॉर्मेट और वो एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक, ओके? नाउ सो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप हेडिंग ही नहीं डालेंगे, सब हेडिंग ही नहीं डालेंगे। उसके बाद आपका आएगा इंटर्नशिप्स, या आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी? सपोज आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, सो आपने अगर कोई टैली का कोर्स किया है, सपोज अगर आपसे कंप्यूटर्स के स्टूडेंट हैं, बी के स्टूडेंट है, तो उससे रिलेटेड कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज आपने अलग से स्टडी की हुई है क्या, उसका कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है। सपोज आपने कोई प्रोफेशनल, जैसे अभी मैंने बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो अलग से ही स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करा रहे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं, तो आपने जो अगर से कुछ सर्टिफिकेशन किया है या आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं भी हो, कुछ आपने एक्स्ट्रा
की हुई हैं कुछ कोर्सेज या आपने, तो वो आप उसमें डाल सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। एक आपने डाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन उसमें आप या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं या टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wonderful. Yes, ma'am. Then comes internship. Internships आपके करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। प्लीज मेक श्योर, जैसे अभी आप लोग सब घर पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, ट्राई टू फाइंड आउट, अभी देखिए ये सेशन ऐसे ही जाने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस के साथ ही जाने वाला है। वी आर सिटिंग एट नवंबर, यू स्टिल हैव फ्यू मंथ्स, फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप्स, जिसमें आप ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, कुछ राइटिंग है, एडिटिंग है, या कहीं कॉलिंग करनी है। ट्राई टू फाइंड आउट सच अपॉर्चुनिटीज फॉर 6 months, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप उसको अपने रिज्यूमे में लिख पाएंगे कि दिस इज व्हाट यू हैव डन, दिस इज द टाइम वेयर इन यू कैन इन्वेस्ट इन योर पर्सनालिटी। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का एक बहुत आपका बहुत अच्छा टाइम है ये इंटर्नशिप्स। देन वंस यू जॉइन द कॉलेज, कॉलेज की तरफ से जो इंडस्ट्री विजिट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स जो आप बनाते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अभी तक कोई डाउट? No, ma'am. वंडरफुल। सो कॉलेज प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, आपने कहीं इंटर्नशिप की है, इंडस्ट्री विजिट्स हैं, या आपने कोई और भी इस तरह आपके कोई सेशंस अटेंड किए, कोई सेमिनार्स अटेंड किए, वर्कशॉप्स करी हैं, all those things you will write. Workshops, seminars, any personality development course, some kind of certifications, internship, college projects, industry visits. Is it clear to everyone? देखिए, why I told you all these things, because किसी ने इंडस्ट्री विजिट नहीं की होगी, किसी के करिकुलम में इंडस्ट्री विजिट होगा ही नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल बीकॉम है तो उसमें इंडस्ट्रियल विजिट नहीं है, बट यू कैन डू सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स लाइक टैली, और सम काइंड ऑफ कंप्यूटर का कोर्स आप कर सकते हैं, बिकॉज कंप्यूटर विल बी, अभी आजकल बहुत सारे नए नए कोर्सेज आते जा रहे हैं मार्केट में, ऑनलाइन कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, 2 months के कोर्सेज, 3 months के कोर्सेज, जो आपके प्रोफेशन को जिसमें आप जाना चाहते हैं, वट एवर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू हैव, प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। बिकॉज लुक, रेज्यूमे बनाना 2 दिन का काम है। व्हाई आई एम सेइंग 2 दिन का काम है? इट्स अ 2 days जॉब ओनली। डे 1 आपने बैठा, आपने पूरा अपना फॉर्मेट देखा रेज्यूमे का, आपने उसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल की, राइट? सारे ढूंढ ढूंढ के आपने सर्टिफिकेट्स निकाले, उसमें सारी फिल इन करी इंफॉर्मेशन। डे 2 यू गॉट इट एडिटेड, आपने उसको चेक कराया किसी भी एक्सपर्ट से, सीनियर से, फ्रेंड से, जो भी है। प्लीज मेक श्योर यू गेट इट चेक विद समवन एक्सपीरियंस्ड आउट देयर, राइट? योर रेज्यूमे इज डन, बट उस रेज्यूमे में इंफॉर्मेशन फिल क्या करनी है? इट्स अ लाइफ लॉन्ग जॉब। अभी आप कॉलेज में हैं, सो आपका 3 years 4 years का जो भी आपका करिकुलम का पीरियड है, इसमें आप वट एवर एक्टिविटीज, व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, दे डू दैट, दे यूज्ड टू कम टू मी, मैम मैं अपनी हॉबीज में क्या लिखूं? आई कैन नॉट टेल यू दैट आप हॉबी में क्या लिखोगे। जो आपने हॉबी लिखी है उससे पर्टेनिंग मैं क्वेश्चंस आपको बता सकती हूँ, राइट? बट इट इज योर पर्सनालिटी। आपकी अगर कोई हॉबी है, सोचिए बैठ करके, व्हाट इज माय हॉबी, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, ओके? एंड दिस इज द टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन योर पर्सनालिटी। आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, इफ यू आर वॉचिंग मूवीज तो आप कुछ अच्छी क्वालिटी मूवीज देख सकते हैं, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग सीरीज, अभी जनरली स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, इट्स फाइन, कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है, बट आप ये पैसिव एक्टिविटी है, लिसनिंग टू म्यूजिक, watching movies, watching series, playing games, video games especially, these are passive activities। मतलब इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप जस्ट सुन रहे हैं बैठ के। तो ऐसी भी कोई एक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू कि आप म्यूजिक है जैसे, तो सिंगिंग है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या डांसिंग है, या फॉर एग्जाम्पल फिटनेस के लिए आपने कराटे सीखा है, या स्विमिंग है, अभी तो स्विमिंग पूल सब बंद है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि लॉन्ग टर्म ओवरऑल पूरा आपको जनरल बता रही हूँ। सपोज स्पोर्ट्स में आप फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, राइट? अभी आपको ये सब आप नहीं कर सकते हैं, तो आप योगा कर सकते हैं, अकेले अकेले क्या क्या कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, आप अपने टेरेस पे जॉगिंग कर सकते हैं, फिजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज। आपको अगर इंटरेस्ट है
आप यू कैन गो फॉर गार्डनिंग. अगर आपको इंटरेस्ट है नेचर में तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल दे हैव ट्राइड देयर हैंड्स ऑन कुकिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन. इवन दोज हु डिडंट वर नॉट कुकिंग अर्लियर दे डिड इट. नए नए डिशेस बना सकते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट आपको रिज्यूमे बनाना जो है दैट इज वेरी इजी इफ द रॉ मटेरियल इज रेडी विद यू. सो यू नीड टू वर्क ऑन द रॉ मटेरियल. सिमिलरली हॉबीज के बाद अगर हम आते हैं, जैसे सपोज मैंने आपको बता दिया कि आपको रिज्यूमे में क्या क्या लिखना है. सो आई टोल्ड यू अबाउट प्रोजेक्ट्स, लाइफ प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, एनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज वो आपने की. उसके बाद हम आ जाते हैं, आपको लिखना है अचीवमेंट्स. इसमें हम तब तक नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं या फर्स्ट पेज के ही नीचे. सो अचीवमेंट्स एंड एक्रेडिटेशंस में सपोज यू हैव वन एनी कॉम्पिटिशन, आपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कोई पोजीशन सिक्योर्ड करी है आपके 10th 11th 12th में, आप आपके कॉलेज में हेड बॉय थे या स्पोर्ट्स बॉय थे या स्पोर्ट्स गर्ल थी, आप कल्चरल एक्टिविटी सेक्रेटरी थी. बॉयज और गर्ल्स लाइक ट्रीट इज इक्वली. सो वो सब आपके आप अचीवमेंट्स लिख सकते हो. एकेडमिक्स रिलेटेड लिख सकते हो कि आपने कोई पोजीशन सिक्योर किया, अपने एकेडमिक्स में डिस्टिंक्शन आया, आपने परफॉर्म किया, आप टॉपर रहे. या एकेडमिक्स नहीं है तो आपका कल्चरल एक्टिविटीज रिलेटेड हो सकता है. आपने जितनी भी एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या वॉलंटियर एक्टिविटीज में, उसमें आपने कोई पोजीशन विन करी है, जीते हैं आप, तो वो किस में आ जाएगा? आपके अचीवमेंट्स. This is the difference between extracurricular activities and achievements. Anyone who can tell me what is the meaning of the word extracurricular activities? Anyone? Activities Anyone? other than studies. Okay. Activities other than studies. Correct. Curriculum means your syllabus prescribed, by your university or college. That is your syllabus. Other than that, curriculum के अलावा आप क्या कर रहे हैं? I'll repeat, though I have already repeated, I'll repeat. Whether it's related to music, it's related to cultural activities, debates, discussions, drawing, painting, slogan competition, debate competition, discussions, and participating in volunteering activities like blood donation drive, sapling distribution, or sapling plantation drive, or books. Why I'm repeating this? Because I'm involved in all these things and it gives the exposure to your personality. That's why participating in extracurricular activities is very, very important. और उसमें आपने आपकी एफर्ट को किसी ने रिकॉग्नाइज किया, अवार्ड किया, सम्मानित किया, आप जीते उसमें, यू वन, तो दैट विल बी योर अचीवमेंट. सो इज इट क्लियर? अचीवमेंट्स के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखेंगे आप, एंड देन बुलेट पॉइंट्स बना करके, देन उसके बाद आप लिखेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ योर पर्सनालिटी. ठीक है? स्ट्रेंथ्स ऑफ योर पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ्स ऑफ योर पर्सनालिटी क्या होती हैं? We can express ourselves in front of others, and we can talk with new people firmly, and that's it, ma'am. I'm sorry, I'm not able to get you. आप फिर से बोल सकते हैं बेटा? Tell me. मैम जैसे कि हम नए नए लोगों से बहुत अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं, खुद को ऑफिशियल लोगों से, और अपने आप को दूसरों के सामने अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये हमारी स्ट्रेंथ्स हो गई, और वी कैन कन्वे आवर मैसेज डायरेक्टली टू अदर्स. हाँ, ये मुझे आपने एक एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ दिया है कि क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ. ये आपने मुझे एग्जांपल दिया. दिस इज योर स्ट्रेंथ, राइट? फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग इज माय स्ट्रेंथ. ओके, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक के सामने सबके सामने जाने में डर लगता है. तो स्ट्रेंथ वो चीज होती है जो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं. ठीक है? दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्सनालिटी. इट कैन बी योर लीडरशिप स्किल्स. सपोज काफी सारे बॉयज हैं, वो फुटबॉल में पार्टिसिपेट करते होंगे, क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते होंगे, तो और अगर वो उसके कैप्टन हैं तो दैट मीन्स दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज. अब लीडरशिप क्वालिटीज होंगी तो वो डिसीजन भी लेते होंगे, राइट? तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो सकती हैं. इट कैन बी योर पेशेंस, इट कैन बी योर डिलीजेंस. डिलीजेंस मीन्स आपके अंदर बहुत क्षमता है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं. इट कैन बी स्मार्ट वर्क. लेकिन देखिए, कीवर्ड्स मेरे कहने से मत लिखिएगा. प्लीज आइडेंटिफाई that what are the strengths of your personality.
It can be expressing yourself, जैसा कि आपने बोला, public speaking can be your strength. Your strength can be creativity and imagination, thinking out of the box. Okay, so there are n number of strengths. लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी strength क्या है. Is the personality, what is the strength of your personality, वो आप उसमें लिखेंगे. ठीक है, लेकिन प्लीज मेक श्योर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप उसमें स्ट्रेंथ लिखेंगे, ये हम इंटरव्यू में भी कवर करेंगे, यू शुड बी रेडी विद द एग्जाम्पल्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो कैसे मान लेंगे कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं. अगर आपने एक्टिविटीज में लिखा है कि यू वर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि यस यू हैड गुड लीडरशिप स्किल्स. अगर आप अपने क्रिकेट कैप्टन टीम के कैप्टन हैं या आप अपने क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, देन इट विल बी प्रूव दैट यस यू हैव गुड लीडरशिप स्किल्स. अंडरस्टूड? ये स्ट्रेंथ्स वाला पार्ट क्लियर हुआ? मैंने बहुत शॉर्ट में हालांकि आपको बताया. एनी डाउट एनीवन? स्ट्रेंथ्स? नो मैम, क्लियर. ऐसा तो नहीं है कि सब बस बैठ के सुन रहे हैं और हर बार में नो मैम, बिकॉज अभी तक तो कोई डाउट आया नहीं. इज दैट सो? नो मैम. No, ma'am. Listening carefully. Because it will be for you people only, because it will be very essential and very beneficial for you people, है ना, if you taking the fine. तो strengths के बाद आप लिखेंगे hobbies. Hobbies में आपको already explain कर ही चुकी हूँ. I have given you at least examples of 20 different hobbies. But don't write hobby मेरे कहने से कि ये वाली hobby. किसी की हॉबी रीडिंग हो सकती है, रीडिंग बुक्स हो सकती है. Someone has the hobby of writing blogs, writing poetry. किसी की bird watching, nature watching, photography, gardening, cooking मैं आपको बता ही चुकी हूँ, dance, music, drama, and going out on cycling, yoga, and it can be any sports में कुछ भी हो सकती है, chess, playing chess, swimming, any activity which you love to do in your leisure free time, when you want to relax and you get rejuvenated, आप refreshed हो जाते हैं, recharge हो जाते हैं उस activity को करके. That is the hobby. Now you need to sit down and think that what is that activity. Look, sleeping cannot be a hobby, okay? Eating food cannot be a hobby, remember that. So इस तरीके की funny चीजें बिल्कुल मत लिखिएगा. It should be something creative, something that fills you with energy. Okay, it can be watching inspirational videos, it can be reading, writing. I told you like 20 different examples. So can anyone like some of you can unmute yourself and tell me hobby. Yes, पूछिए. या यस मैम. मैम एक्सरसाइज करना हॉबीज होता है? क्या बेटा? एक्सरसाइज करना. एक्सरसाइज करना हॉबी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. जनरली बॉयज पूछते हैं, हो सकता है. लेकिन कोई भी वो एक्टिविटी आप कुछ मंथ से उसको कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने आज रेज्यूम बनाया, आपने भी 2-4 दिन पहले या 1 महीने पहले ही वो स्टार्ट करिए तो आप भी नहीं. डू इट एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स. इट शुड बी एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स. वो होना चाहिए आपका कि आप काफी लंबे समय से उसको करते आ रहे हैं. एनी अदर डाउट? एनी अदर पर्सन वुड लाइक टू अनम्यूट एंड टेल उसकी हॉबी? मैम राइटिंग. राइटिंग, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल हो सकती है. पोएट्री. राइटिंग पोएट्री, बिल्कुल, यस, इट्स अ वेरी गुड हॉबी. It can be in English, it can be in Hindi. Writing articles, writing blogs, writing stories, or maybe writing a book. Yes? Yes, ma'am. I do poetry and cooking as well. Cooking, very good. कुकिंग में भी ऐसा नहीं कि हम 2-3 चीजें अगर बना लेते हैं, मैगी बना ली हमने, सैंडविचेस बना लिए, टी बना ली, बनाना शेक, 5-6-10 चीजें बना ली सर्वाइव करने के लिए, तो वो हॉबी नहीं होती है कुकिंग. ठीक है ना? यू शुड नो गुड डिशेस. Yes, ma'am. So many dishes. तब उसको हम बोलेंगे कि आपकी हॉबी है. Yes, anyone else would like to tell me any other hobby? कोई और अपनी हॉबी बताना चाहते हैं? म्यूट करके बताइए. Ma'am, I like to read a lot of books and paint and watch dramas in other languages like Korean, Chinese, and Turkish. Okay, good, very good. And listening to music also in different languages. And I'm also learning French and doing a certificate course in it and all these. Very good, very good. But remember one thing, if you have lots of hobbies, categorize that, if you have 6-7 hobbies, so make sure that, you should write those hobbies in which you are into, which you are deeply involved into. Okay, and on which you can talk in the interview.
because they will ask you the questions, further detailed questions about that particular hobby or strength that we will discuss in detail in sessions of interview preparation as well. But they'll definitely ask you if you'll say that I love to watch movies, what kind of movies? If you'll say I love to read, so they'll ask you what kind of books, who's your favorite author, or suppose what exactly, which books have you read? So ये common questions आएंगे. So ये questions Okay, be ma'am. prepared with that. So that's why I Yes, told you ma'am. resume writing and interview preparation goes hand in hand. तो मैंने काफी सारे pointers आपके interview के भी cover किए हैं इसमें. Fine. Next hobbies के बाद इसमें next आता है आपका, I'll tell you. We have discussed name, address, phone number, email, educational qualification, professional experience, if any, otherwise not. Additional professional or technical activities, I told you, extracurricular activities, accreditations and achievements, hobbies, interests and activities means your देखिए yes, जिसकी बहुत ज्यादा hobbies हैं तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, hobbies and areas of interest. हॉबी जो आप हार्डकोर एक्टिविटी काफी समय से कर रहे हैं, you're doing it since long over a long period of time and you have mastered that activity. और इंटरेस्ट जिसमें आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और आप करते हो, ठीक है, तो दैट यू कैन डू. देन उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिख सकते हैं, वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, लास्ट में फिर आप देते हो अपने पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, आपके फादर्स नेम और मदर्स नेम और एड्रेस. एड्रेस तो आप पहले ही लिख देते हो शुरू में. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेज्यूमे. आई विल शो द पीपीटी इन अ वाइल जिसमें सारे पॉइंटर्स हैं. उसके पहले यस टेल मी. Excuse me, ma'am. Knowing different kinds of languages and speaking different kinds of languages can be a strength point. It can be the strength, but it will be more into extracurricular activities. वो strength तब होगी जब आपने उसके basis पे कुछ achieve किया हो. Then it can be your strength. Okay. Okay. Okay, ma'am. So I was telling you before I forget, I want to tell you something very important here. We discussed about strengths. Now let's come to weakness. Weakness, never ever write your weakness in your resume. आपके resume में आप weakness बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे. Though you have to prepare for the weakness, you should be ready with the question ki, tell me what is your weakness, why do you think it's your weakness, and how your weakness has affected you, or what are you doing to overcome this weakness. But don't tell your weakness till the time they ask you. बहुत सारे colleges और होते हैं higher studies के लिए जो अपना format खुद का दे देते हैं. Instead of resume, they give you the format in which you have to write down your information. उसमें अगर लिखा हुआ है, if they have asked you your weakness, only then you write the weakness. If until the time in interviews also, till the time they ask you specifically, what do you think is the weakness of your personality? Till that time, please don't mention your weakness. Remember that. I have covered that in the slide also. Yes. I have covered all the pointers of the resume. Now I will start the PPT. I'm going to log in with the other device now. And till the time, anyone, Abhishek sir, I'm going to log in with the computer now, laptop, and I'll share the PPT. So will you make me the co-host so that I can share the screen? You can join through the same link. Yes, I have to. Till the time, students, please free feel to ask any questions if you have. Earphone देता. Earphone देता ना. Please keep your mics on mute. That's connecting. It will just take a moment. Ma'am. Yes, please tell me. मैम जो हॉबीज बताई है ना, मैम कुछ से वो क्लियर कॉन्सेप्ट मेरा नहीं हो पाया. कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल क्लियर. मैम जो हेलो
यस बताइए। यस, आपका जो हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन है पूछिए। हॉबी के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम डीपली आवाज आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। हाँ अब ठीक है, बताइए। 2 डिवाइसेस से लॉगिन था, बताइए। मैम जो हॉबीज आप बताई थी वो, मैम हॉबीज मतलब क्या मतलब शौक होता है जो कि मैम रेगुलर एक्टिविटी करने के साथ साथ एंजॉयमेंट है, उसको कहते हैं। देखिए, आप सपोज कोई पर्सन है। आप थोड़ा हिंदी में हमें बताइएगा। अच्छा, हिंदी में बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए, अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? आप किस कॉलेज में हैं? क्या कोर्स कर रहे हैं आप? सिविल का मैम, डिप्लोमा। सिविल का डिप्लोमा कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो तो आपका करिकुलम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट है आपका। उसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज में आप करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई आप खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई आप गेम खेलते हैं, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, या आपको गाने का शौक है, या डांस करने का शौक है, या ड्रामा करने का शौक है, या आप स्विमिंग करते हैं, या आपको सपोज गार्डनिंग का शौक है, या कुकिंग का, तो जो एक्टिविटी जो आप पढ़ाई के अलावा करते हैं उसको हॉबी कहते हैं। घूमना मैम? घूमना किस तरीके से? क्या बाइक पे घूमना, कहीं लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना, साइकिलिंग, किस तरीके से घूमना? ट्रैवलिंग भी बिल्कुल हॉबी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन किस तरीके से, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप मुझे। रोड पर घूमना मैम। देखिए, खाली अगर आप ऐसे रोड पे घूमेंगे तो आप जो इंटरव्यूअर है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या आप बता पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि सोना, स्लीपिंग और ईटिंग ये हॉबी में नहीं आता। लेकिन आप घूमने अगर जा रहे हैं, सोचिए आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है, या आप बाइक की ट्रिप्स पे जाते हैं, या ऐसे घूमना जाते हैं जैसे आप बहुत सारी जगहों पे आपने विजिट किया, उज्जैन गए, इंदौर गए, हिमाचल गए, आप अपना हिल स्टेशन पे गए हैं, या कहीं पर आप गए और वहां की संस्कृति के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा हॉबी में कि आपको जगह जगह घूमने का और वहां के लोगों के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में, वहां की जगह के बारे में आपको जानने का शौक है। देखिए, हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में ये बताए कि अच्छा हाँ, इसमें ये खूबी है, इस पर्सन में ये खूबी है, उसको बोलते हैं हॉबी। तो और देखिए, अगर अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अभी तक कोई हॉबी नहीं होती, उनको नहीं समझ में आता, तो दिस इज द टाइम। अभी बैठ करके सोचिए आप कि मेरी क्या हॉबी हो सकती है, मुझे क्या पसंद है, और अगर नहीं भी है तो आपको कुछ ना कुछ डेवलप करनी चाहिए, उसको बनाना चाहिए कि हाँ मैं ये करता हूँ, उसमें आगे बढ़ाता हूँ अपने आप को। घूमने की हॉबी है तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, साइकिलिंग शुरू कर दीजिए, आप जॉगिंग करना शुरू कर दीजिए, आप जाकर के वहां पे नेचर, अगर आपको प्रकृति में रहना पसंद है तो आप प्रकृति में जाकर के बर्ड वॉचिंग है या इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आपको थोड़ा समझ में आया? आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, यही मैम। Any other person, any candidate, any doubt? No, ma'am. Okay, I'll just share my screen. Huh? Give me a second. Desktop resume. आप लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? यस मैम। मनीषा जी विजिबल है स्क्रीन। यस मैम। तो सबसे पहले ये मैं डिस्कस कर ही रही हूँ, डिस्कस कर ही चुकी हूँ। देखिए, जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है उसी का है ये एक समरी है, और आपको मैं फिर से सारे पॉइंटर्स एक बार
पूरे रिवीजन भी करा दूंगी और फिर से भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आप एक बाउंड्री देते हैं इंटरव्यूअर्स को कि वो आपसे क्या पूछें, और अगर आप उनको ये एक बाउंड्री नहीं देते हैं तो स्टूडेंट्स नहीं, सॉरी, इंटरव्यूअर्स वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। एक फ्रेशर का 1 या 2 पेज पे होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव जब तक पूछा नहीं जाए तब तक रिक्वायर्ड नहीं है। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो ऐसा होना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, आप समझा सकें। इट शुड नॉट बी द कॉपी पेस्ट फ्रॉम इंटरनेट। सेल्फ एटेस्टेशन वेरिफिकेशंस तब तक नहीं लिखने चाहिए जब तक, रिकमेंडेशन जब तक वो आप पूछे नहीं जाए। ठीक है, अचीवमेंट्स और एक्रेडिशंस आई हैव टोल्ड यू कि उसको अच्छे प्रोमिनेंट लेवल पे, छोटे जब आप बहुत छोटे हैं 5th 6th 7th के तब के नहीं, 9th ऑनवर्ड्स हो तब लिखने चाहिए। ओके, और आपको लास्ट पॉइंट में बता, वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी ऑफ कोर्स आपको मेंशन करना चाहिए। एंड आई हैव बोल्ड में देखिए लिखा हुआ है, डोंट मेंशन वीकनेस अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड। इसका छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो क्या वो आपको आकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी अच्छी अच्छी चीजें बताता है? ठीक है, क्या वो कभी ये बताता है कि ये जो मैं नया इक्विपमेंट लेके आया हूँ, इस इक्विपमेंट से बिजली बहुत ज्यादा चलेगी, या उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की क्या वो बुराई, कोई वीकनेस बताता है? कभी भी नहीं। जब तक आप पूछेंगे नहीं कोई वो कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसा तो नहीं होता है कि हमारी बिजली ज्यादा खपत होगी। हाँ मैडम, हो सकती है। टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, सारी अच्छी बातें बताएगा। वैसे ही यू आर देयर टू सेल योर कैंडिडेचर। आप भी एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और आप अपना कैंडिडेचर वहां सेल करने जाएंगे इंटरव्यूअर के सामने, तो आप अपने बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन झूठ नहीं बताएंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डोंट गिव एनी फेक इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। प्लीज मेक श्योर, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, देन लेकिन वीकनेस आपसे पूछी जाए, प्रिपेयर करके रखिए उस आंसर को कि क्या वीकनेस है मेरी पर्सनालिटी की, बट जब तक पूछ नहीं जाए नहीं बताएंगे। देखिए, ये एक 1 पेज का रिज्यूमे है जो स्टूडेंट 1st ईयर में जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक सैंपल आपसे ले रही हूँ। 10th और 12th लिखा हुआ है। ठीक है, 10th और 12th आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर एड्रेस है, फोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी। एक ये फॉर्मेट भी होता है, और नहीं तो ऐसा होता है कि 1st पेज पे ये होता है और 2nd पेज पे होता है। देन यहाँ पर आप देखिए अचीवमेंट्स एंड एक्रेडिशंस। इस अचीवमेंट्स एंड एक्रेडिशंस जो है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में है, गोल्ड मेडल लिया स्टेट में और नेशनल में, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। फिर हॉबीज हैं और स्ट्रेंथ्स हैं। अब एक फ्रेशर के पास इसके अलावा और क्या होगा, राइट? फ्रेशर के पास यही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से पार्टिसिपेट किया है वो है, उसमें कुछ जीते हैं तो वो है, एंड हॉबीज और स्ट्रेंथ्स। तो 1 पेज में भी आ सकता है और 1.5 पेज में भी आ सकता है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है मोर देन 10 years, तो आप देखिए पहले उसकी क्वालिफिकेशन होगी, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, फिर एडिशनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, हॉबीज, इंटरेस्ट, वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ है, फिर आपका तो एक्सपीरियंस। देखिए 1.5 पेज तो आपका एक्सपीरियंस में चला गया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं, मैं जस्ट आपको कंपेयर करने के लिए एग्जाम्पल बता रही हूँ इनकी। ठीक है, ये मैं सारे पॉइंटर्स आपको बता चुकी हूँ। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, इट शुड बी फॉर्मल। क्वालिफिकेशन में प्लीज मेक श्योर कि आप सब लिखेंगे, आपका नेम ऑफ द डिग्री, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, आपके सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग एंड मार्क्स। मार्क्स कम हो तो आप उसको लिखना अवॉइड कर सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लैंग्वेजेस आप अलग से लिख सकते हैं अगर आपकी 2 से ज्यादा हैं तो। एल्स आप प्रोफेशनल टेक्निकल एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने अलग से कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, कोई लैंग्वेज कुछ किया है तो। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए एंड प्लीज डू राइट। अचीवमेंट्स सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल ओनली लिखा है, बट यस इंटर कॉलेज, स्कूल, इंटर स्कूल लेवल हो तो भी वो लिखिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल लिखिए। हॉबीज, जिसके बारे में आप डिटेल में बात कर सकें, और इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है,
वॉलंटियर एक्सपीरियंस जरूर लिखिए, पार्टिसिपेट कीजिए वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस उसमें। अभी देखिए कोविड के समय बहुत लोगों ने खाना पहुंचाया, लोगों को दवाइयां पहुंचाई। अभी भी आप जैसे किसी को हो जाता है कोविड तो उसके बाद उनके अंदर एंटीजेंस बन जाती हैं, अपना टेस्ट करा करके आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। स्ट्रेंथ्स हैं जिसमें आप कन्विंस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस बारे में कन्विंस कर सकें इंटरव्यूअर को कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है। अगर आप लीडरशिप क्वालिटी लिख रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने अभी तक पास्ट में किस टीम को लीड किया है, क्लास को लीड किया है, स्कूल को लीड किया है, क्रिकेट टीम को लीड किया है, अपनी कॉलोनी में ग्रुप को लीड किया है, क्या किया है, ठीक है ना। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, जेंडर, ये सब। नाउ एक बहुत ही देखिए बोल्ड में एक बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा है, प्लीज मेक श्योर टू डू दैट द कैंडिडेट शुड मेक देयर ओन रेज्यूमे, प्रिंट इट यूजिंग स्टैंडर्ड फॉन्ट्स एंड चेक थॉरली। उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप सब लोग फ्रेशर्स हैं तो आप अपनी फैकल्टी मेंबर्स से अपना रिज्यूमे बिफोर अप्लाइंग समवेयर जरूर चेक करवाएं, या किसी सीनियर से जो आपको लगता है कि वो वेल रेड हैं, करेक्ट आपको इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप उसको जरूर चेक करवाएं, ठीक है। स्ट्रेंथ्स में अगर आप ये शब्द लिखते हैं पॉजिटिव, हार्ड वर्कर, डिटरमाइंड, मोटिवेटेड, तो क्या होगा, इसको ना प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। आप कैसे कह सकते हो कि आप डिटरमाइंड पर्सन हो, आप कैसे कह सकते हो कि आप एक मोटिवेटेड पर्सन हो, ठीक है। दैट्स व्हाई यू शुड अवॉइड दिस। लेकिन अगर आप प्रूफ कर सकते हो एग्जाम्पल्स के थ्रू, ओनली देन यू गो हेड विद दिस, ठीक है। देन वीकनेस में आप बहुत इमोशनल हो, टेम्परामेंटल हो, आपको एंगर रिलेटेड इश्यूज हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटेड इश्यूज हैं, ये बिल्कुल भी मत लिखिए। इससे आपका कैंडिडेचर बहुत वीक हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरव्यूअर इस तरीके के पर्सनल को हायर नहीं करना चाहता। देन आप अपनी वीकनेस को इसका मीनिंग डोंट कैमोफ्लेज योर स्ट्रेंथ बाय स्टेटिंग इट एज अ वीकनेस। इसका मतलब ये है कि सपोज आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे से काम करते हैं और आप बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हैं, तो उसको आप एज वीकनेस बता रहे हैं, तो वो बहुत इजीली समझ जाएंगे कि आप उनको थोड़ा सा घुमाना चाह रहे हैं, कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना चाह रहे हैं, कि ये तो एक स्ट्रेंथ है कि आप एक परफेक्शनिस्ट हो, मतलब अपने काम में बहुत ध्यान देते हो, लेकिन फिर भी आप इसको एज वीकनेस पोर्ट्रे कर रहे हो। तो नेवर डू दैट, ओके। इट विल गो अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट जाएगा ये। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल्कुल कोई भी फेक इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी मत मेंशन कीजिएगा, बिकॉज देखिए इसमें भी लिखा है दे विल अनकवर द ट्रूथ बाय क्रॉस क्वेश्चनिंग विद इन नो टाइम। आई टोल्ड यू, वो बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो आकर के इंटरव्यूज लेते हैं, वो बातों में, क्वेश्चंस में बहुत इजीली आपको कैच कर सकते हैं, दैट विल गो अगेंस्ट यू। नाउ फ्यू पॉइंटर्स व्हिच आई विल गिव यू। देखिए मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास भर भर के बहुत सारे रेज्यूमे आते हैं, दे जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स में पलटा करके वो देख लेते हैं रेज्यूमे कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका जो रेज्यूमे है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसमें बिल्कुल आप एरर्स के लिए यू शुड हाईलाइट करनी चाहिए आपको इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, और जो एरर्स हैं उसके लिए बार बार रिव्यू करना चाहिए। योर रेज्यूमे शुड बी वेरी पॉलिश्ड, इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कॉल बैक आए, इंटरव्यू के लिए जॉब ऑफर्स आए। देन और रेज्यूमे फॉर्मेट में ये जो प्रोफेशनल के लिए है, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो लिखिए, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए ब्लैंक, मतलब एक उसमें हेडिंग ही मत डालिए, ये प्रोफेशनल्स के लिए, ये स्लाइड आप लोगों के लिए वैलिड नहीं है। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट स्टेंस आपके पास एवरीथिंग बाय राइटिंग में होना चाहिए। नेम, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी, रेज्यूमे का समरी, ऑब्जेक्टिव, इसको हेडलाइन भी बोलते हैं। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन। स्किल सर्टिफिकेशंस में सारी आपने जो एक्टिविटीज पार्टिसिपेट किए हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिले। यहाँ पर मैं एक पॉइंट, सिंस सर्टिफिकेशन लिखा है, प्लीज पे अटेंशन पीपल, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, वो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास किसी चीज का सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं। कई बार मुझसे स्टूडेंट्स बोलते हैं, पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन है कि मैम वी हैव डन एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी
लेकिन हमारे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है। सपोज आपने अपने 9th 10th 11th 12th में खूब डिबेट्स एंड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपके पास कुछ के सर्टिफिकेट्स नहीं है, लेकिन आप वो कोट कर सकते हैं क्या? यस, आप बिल्कुल कोट कर सकते हैं। यू कैन कोट दैट इन योर रेज्यूमे, यू कैन कोट दैट इन योर इंटरव्यू, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी विल स्पीक। आपकी पर्सनालिटी से आप बहुत अच्छे से ये कन्विंस कर पाएंगे उनको कि यस, मैंने इस डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था, इसका ये टॉपिक था, मैंने इसमें ये पॉइंटर्स बोले थे। बट ऑन द अदर हैंड, आपके पास सपोज आपने सर्टिफिकेट लगाया हुआ है दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट्स, ओके, एंड यू हैव वन, लेकिन आपसे जब बात कर रहे हैं तो आपकी बात करने में आप कन्विंसिंग नहीं हो, आपको याद ही नहीं है कि आपने कौन से डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, तो फिर उस सेंस में क्या लगेगा कि आपने फॉल्स सर्टिफिकेट लगाया है। योर पर्सनालिटी विल स्पीक। अगर आप लिख रहे हैं स्ट्रेंथ में कि दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग या कॉन्फिडेंस, और आप उनके सामने बैठ के बात ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, दैट मीन्स यू आर टेलिंग अ लाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सर्टिफिकेशन वाली पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, हेडलाइन। नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे हेडलाइन के ऊपर। हेडलाइन मीन्स योर करियर ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको पहले ही बताया दैट ये 2-3 लाइन्स में होना चाहिए समरी में, और क्रिस्प बिल्कुल होना चाहिए, एंड इट शुड हैव सम काइंड ऑफ कीवर्ड व्हिच शुड मेक योर रेज्यूमे इंप्रेसिव एंड रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट होना चाहिए, उससे प्रासंगिक होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और आई टोल्ड यू इट शुड नॉट बी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम इंटरनेट एज इट इज। किसी और से मत लिखवाइएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, उसने लिखा हुआ था कुछ समय पहले, ही केम फॉर अ जॉब इन माय इंस्टीट्यूट, और उसमें लिखा हुआ था उसने कि मैथ में उसको 90% आए हुए हैं। मुझे उसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने उससे थोड़ी देर बाद बात की, फाइनली उसने लास्ट में एंड में ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये उसके फ्रेंड का रेज्यूमे था, और उसने अपना नाम बस चेंज करके उसने दे दिया। वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। सो प्लीज नेवर डू दैट। आप अगर करियर ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा भी आप इंप्रेसिव लिखेंगे और आपकी पर्सनालिटी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही होगी, इंटरव्यूअर सबसे पहले ये बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस करियर ऑब्जेक्टिव। अपना करियर ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कीजिए, मुझे बताइए। अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अगर खुद नहीं लिखा है आपने, उसको समझ के नहीं लिखा है, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। रिमेंबर दैट। एंड इस तरीके की जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल इंटरव्यूअर्स को अपसेट कर देती है, फिर वो आपको बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपने कॉलेज में जो भी सेमिनार्स में अटेंड किए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये आप जरूर उस पे मेंशन कीजिए। जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, असाइनमेंट्स किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा जाके इंडस्ट्री विजिट्स किए हैं, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स करी हैं, बिकॉज ये आपके रेज्यूमे को बहुत स्ट्रांग बनाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इंटर्नशिप, ध्यान रखिए कि इंटर्नशिप्स क्या होती हैं। आपको जॉब नहीं मिलती, वहां पे आपको बस एक वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, और कहीं कहीं थोड़ा सा आपको अमाउंट मिल जाता है एज इंटर्न। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप की है आपने, तो आप जरूर बताइए उनको कि आपने किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर एज इंटर्न की हैं। अगेन इट गिव्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड वेटेज टू योर रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग होता है इससे। आपके जो भी स्किल्स हैं, जिसे वो आपके स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेंथ में भी झलकती हैं, हॉबीज में झलकेंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स में झलकेंगी, और आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं तो आप एक अलग से सब हेडिंग बना करके स्किल्स लिख सकते हैं। सपोज आप किसी ऐसी जगह अप्लाई कर रहे हैं जहां पर रीडिंग और राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल उसको अलग से मेंशन कर सकते हैं। इट विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, स्टैंड अवे फ्रॉम द क्राउड। अब सिंस आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट वुड बी बेटर कि आप अपने अचीवमेंट्स हाईलाइट करें, जो भी आपने पार्टिसिपेट किया और उसमें आपने जीता है। उसमें आप अपने वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं। इट ऑल विल एड अप टू योर सीवी। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जैसे ही आपके कॉलेजेस ओपन होते हैं, यू मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन एज मेनी एक्टिविटीज एज पॉसिबल। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट कीजिए, और अभी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज में कर सकते हैं पार्टिसिपेट, तो प्लीज डू दैट। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ्स जो है
कैसे आपकी प्रूव होंगी? जब आप अपने अकम्पलिशमेंट्स और अचीवमेंट्स आप उसमें लिखेंगे तो उससे पता चलेगा कि पर्सन ने अगर ये लिखा है कि उसकी स्ट्रेंथ है पब्लिक स्पीकिंग और उसने जीते हैं अवार्ड्स किसमें, डिबेट्स में, डिस्कशंस में, तो दैट मीन्स उससे पता चल रहा है, वैलिडेशन हो रहा है क्लियर कि इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो पब्लिक स्पीकिंग है और उसने डिबेट्स और डिस्कशंस जीते हुए हैं. Students, any query, please. Any question, any query till now? Please feel to ask. Hello, ma'am. हाँ, बताइए. Ma'am, here's Ritika. Ma'am, my doubt is how one can add this CR or FR thing to his or her resume. मतलब mentioning this is useful or not? What is CR? Ma'am, campus representative, like Internshala select or chooses its CR from the respective college. So how can I use or how can someone uses this? You write this in your extracurricular activities, volunteer, or you can write this in your achievement also. Why I'm saying that? Because there must be some good qualities in your personality. That's why you got selected as campus representative for Internshala. Right? And then you tell them in your interview, or you can write a couple of lines that on which basis, on what are those qualities on the basis of which you got selected. It can be your communication skills, it can be your academics, it can be your exposure to your personality. Getting it? Yes, it will come. This campus representative by Internshala, they selected you. That means you faced a selection process and you got selected. So you can write it in your achievements and accreditations, definitely. Okay, ma'am. Okay. And you tell them that what were those qualities on the basis of which you got selected, and what was the selection process, and what are your responsibilities as CR. आप क्या क्या करते हो? Okay, ma'am. Do that. It's a very good thing. Any other questions, students? Hello, ma'am. Yeah, tell me. Ma'am, while internship Yes. program, how much time internship require for a job? कितने months की internship होनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं आप? Yes, ma'am. Minimum 2 months की होनी चाहिए, in my view. देखिए इंटर्नशिप्स 1 month की भी होती है, 15 days की भी होती है, 2 months की भी होती है और 6 months की भी होती है. लेकिन why I'm saying 2 months because उसमें क्या होता है, जैसे आप किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ दिन तो वहां पर एडजस्ट अडेप्ट होने में लगते हैं. आप एडजस्ट होते हो, आप अडेप्ट होते हो, वहां का वर्क कल्चर सीखते हो, वहां का काम सीखते हो, उसके बाद ही आप परफॉर्म करोगे ना. तो अगर कुछ 10-15 डेज की इंटर्नशिप होगी तो इट विल जस्ट बी अ फॉर्मेलिटी. सो आप एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मगर अगर जैसे अभी आप ऑनलाइन आपके क्लासेस चल रहे हैं सपोज कॉलेज के, और आपको ज्यादा टाइम मिलता है और अगर कहीं आप कर सकते हैं तो आप लंबे समय तक कीजिए, बट मिनिमम 2 months तक कीजिए. बिकॉज उसका रेलेवेंस तभी होगी, उसकी इंपॉर्टेंस तभी होगी. बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि आप तो पहले काम सीखेंगे, वर्क स्ट्रक्चर और में सेट होंगे, उसके बाद ही परफॉर्म करेंगे ना, उसके बाद ही कुछ सीखेंगे, रिजल्ट देंगे. बट मैक्सिमम इंटर्नशिप कई कंपनीज मांगती है कि 6 month या 6 months का तब मांगती है जब आप MBA कर रहे होते हैं, PG कर रहे होते हैं, तो उनका जो फाइनल सेमेस्टर होता है 6 months का, वो पूरा इंटर्नशिप का ही होता है. जनरली बट मिनिमम 2 months का होना ही चाहिए. एंड 6 months इज वेरी गुड, होना ही चाहिए, वेरी बेटर. इट्स बेटर, नो डाउट अबाउट इट. Any other have I answered your question? Is it clear? Yes, ma'am. Any other questions pertaining to जो भी points हमने भी CV से related discuss किया है, या आपको personality related कुछ और question दिमाग में आ रहा है, please feel to ask. हेलो मैम. मैम क्या रिज्यूम में अपने खुद का फोटोग्राफ लगा सकते हैं क्या? बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस टाइम रिज्यूमे भेजना रहता है, तो क्या हम अपना फोटोग्राफ लगा सकते हैं उसमें? हाँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपको एज इट इज पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना होता है. तो नाउ डेज इट्स अ ट्रेंड टू पुट योर पासपोर्ट साइज. लेकिन अगर कहा है, उन्होंने पूछा है, तो ही कॉर्नर में छोटा सा प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बिल्कुल लगा सकते हैं. यू कैन पुट इट. ओके, थैंक यू मैम. I would request you people to ask more questions. क्योंकि देखिए जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा. That's why I'm asking you.
क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं क्वेरी से, देखिए मैंने तो अपनी तरफ से आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, राइट? लेकिन आपको हो सकता है कोई चीज पॉइंट क्लियर नहीं हुई हो। एनीवन? Ma'am, yes please. what if a person does Sorry? actively? हाँ, आपकी वॉइस क्रैक हो गई। हाँ बताइए। Oh, what if a person doesn't know doesn't know a answer of a question consecutively? Okay. In a sense that a person is and that person doesn't know about certain things. So the fact कि I don't know or consecutively नहीं बन. Got it. Mute your mic. Did you hear me? Yes. Can you please mute the mic? People, please make sure that you keep your mics on mute. It was too much disturbance. Okay, fine. I heard your question. Ma'am, did you hear my question? Yes, I heard it. Okay. I heard it. And it's a part of interview preparation, but we can cover. ऐसी कोई बात नहीं है. It's a part of interview preparation. Resume का नहीं है. But I already told you that you people are not encyclopedia or Google or Wikipedia, right? बट होता है ना, जैसे consecutively आपको आंसर नहीं आ रहा है, maybe, and then वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो what should a person do? वो क्या वो उस इंसान, मतलब वो जितना उसे उस चीज का नॉलेज है वो बताए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो गलत हो जाता है. Now, please, nobody unmute your mic, okay? Listen carefully. This is something very important. Even if it's consecutively, अगर आपको बार बार भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है, it's okay. आपको क्या करना है उस वक्त, आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको आंसर नहीं मालूम है, what is the best you can do? आप बेस्ट क्या कर सकते हैं? That you don't get nervous about it. Don't feel down about it. You can politely decline that I don't know. पहले ही प्रिपरेशन इतनी अच्छी कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिज्यूमे में दी है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपके होम टाउन के बारे में, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपके स्ट्रेंथ्स हॉबीज के बारे में, सबकी. लेकिन फिर भी सपोज अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, यू हैव टू पोलाइटली से दैट सॉरी सर आई डोंट नो. लेकिन गलत आंसर, गेस वर्क, वो बिल्कुल मत कीजिए. गेस करके आप कुछ और गलत आंसर दे रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट. आप उस वक्त बेस्ट क्या कर सकते हैं, दैट डोंट गेट नर्वस अबाउट इट. नर्वस बिल्कुल मत होइए, एंड बी रेडी, बी कीप योर एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिविटी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 4-5 क्वेश्चंस के बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमसे बनता है, हमें मालूम होता है, बट वो 4-5 क्वेश्चंस का लोड हमारे ऊपर इतना हो जाता है दैट वी फील ओ माय गॉड हमसे वो क्वेश्चंस नहीं बने, तब तक हम नर्वस हो चुके होते हैं. तो व्हाट इज द बेस्ट यू कैन डू इज डोंट गेट नर्वस. Wait for the question which you know the answer of, or as soon as you get the question which you know the answer of, speak it with full confidence and your positivity. उससे ये पता चलेगा that आप tough situations में nervous नहीं होते हो. You can gather yourself and perform your best. This is the best you can do. Did I answer your question? Is it clear? Yes, ma'am. Thank you. Most welcome. वीकनेस मैंने फिर से आप लोगों के लिखा है, नेवर एवर राइट योर वीकनेस इन द रेज्यूमे टिल द टाइम दे आस्क यू, डोंट टेल इट. इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया. हॉबीज वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट. जो हॉबी आपको अच्छा लगता है काम करने में एंड आपका पैशन है चीजों को लेकर के, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर हॉबी. अगर आप हॉबी लिखते हैं अपने रेज्यूमे में तो रिक्रूटर को ये पता चलता है, इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि आप एक ऑलराउंड पर्सनालिटी, पढ़ाई के साथ साथ आपने दूसरी एक्टिविटीज भी की हैं. इससे आप अपनी स्किल्स जो है वो शोकेस कर सकते हैं, है ना. इट कैन बी सॉफ्ट स्किल्स, इट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज. मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ. प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट. ठीक है. Employees use resume throughout the hiring process.
और वो पूरे समय जब आपका इंटरव्यू चलता रहता है एंड पूरा प्रोसेस, तब तक वो आपका रिज्यूमे यूज करते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। इट्स अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। अभी आप एक बार और देख लीजिए, लास्ट इंपॉर्टेंट 10 टिप्स हैं, so please be attentive and take a note of it, and then we will take the question answers. First and foremost, make it brief. Unnecessary उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। It should be short. To the point means concise. Concise होना चाहिए। Sorry, short मतलब होता है concise, and to the point means precise. So your resume should be concise and precise. Concise मतलब short में, और precise मतलब to the point. इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। उसमें सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए, फालतू की इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इन ब्रीफ, इलैबोरेट डॉक्यूमेंट नहीं है ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज मेक इट सिंपल एंड इजी टू रीड। नो मैटर हाउ गुड यू आर एट इंग्लिश लैंग्वेज और योर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, please make sure that it should be simple. Use simple words. Standard words use कीजिए उसमें, but बहुत heavy tough words नहीं use करने हैं आपको, बहुत technical आपको उसको typical नहीं बनाना है, complicated नहीं बनाना है। For example, I'm a faculty of English language and I know vocabulary जो GRE और GMAT के students के लिए मैं लेती हूँ। अगर वो vocabulary में अभी यहाँ पर आपके सामने इस particular session में use करती तो आपको session बिल्कुल समझ में नहीं आता। So depending upon the crowd, depending upon the requirement, you should use the language. Okay, should please make sure that you keep it very simple and easy to read, so that जो interviewer है उसको minimal amount of time लगे interview को पढ़ने में, ठीक है ना? As I already told you that they take just few seconds. So आपके जो fonts हैं वो भी professional होने चाहिए, standard होने चाहिए, ठीक है? You should use a basic clean font like Arial or Times New Roman. Keep your font size between 10 to 12, preferably 12 रखिए, because थोड़े से elderly होते हैं, चश्मा लगाते हैं, उनको एकदम बहुत छोटे font में आप अपना resume नहीं देंगे। Select a clear, readable font. Designer calligraphic fonts नहीं use करने हैं बिल्कुल भी। Standard आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल अभी आपके सामने भी बिल्कुल simple, straightforward points use किए, कोई designer PPT नहीं बनाया है यहाँ पे, okay? Because it should be professional. It should give a profession, because ये professional document है। Reduce any extraneous white space. अगर बीच बीच में कोई white space है आ रहा है, उसमें blank space है, तो उसको eliminate कर दीजिए, reduce कर दीजिए। उसको erase कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो बीच बीच में distraction cause करेगा। And I already told you कि उसमें आप font size अपना 12 रखिए, उसमें unnecessary की कोई भी आगे भी होगा इसमें, खैर जो sections हैं proper हैं, सब headings हैं वो रखिए। Include only most relevant information and put the most important information first. मैं आपको पूरा structure पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूँ कि आपको अचीवमेंट्स, एजुकेशन, स्किल्स ही उसमें करने हैं। रेलेवेंट मतलब प्रासंगिक, मतलब काम की बातें ही सब लिखनी है, प्रायोरिटी वाइज लिखना है। देखिए इस बात को ध्यान रखिए, कुछ लोगों की हॉबीज बहुत अच्छी होती हैं, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, किसी ने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया होता है, किसी ने किसी अदर फील्ड में किया होता है। तो आप जब वहां इंटरव्यू में होंगे तो आप जो भी आपकी पर्सनालिटी का बेस्ट पार्ट है वो हाईलाइट कीजिए। यूज पावर वर्ड्स लाइक जो आप ये अचीवमेंट्स में लिख सकते हैं, दैट यू हैव अचीव्ड सो एंड सो थिंग, यू हैव अर्न दिस थिंग, यू हैव कंप्लीटेड, अकम्प्लिश्ड। ये आप किस में लिख सकते हैं? अचीवमेंट्स वाले कॉलम में। जो आपने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, उसमें जब भी आप जीते हैं तो आप इस तरीके के पावर वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। योर सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट, आइडियाज आपके कंसाइज प्रिसाइज होने चाहिए, और लैंग्वेज जो है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए विदाउट एनी एक्सट्रानियस वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें बिल्कुल, लेंदी सेंटेंसेस बिल्कुल भी मत लिखिए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। ओनली इंक्लूड सब हेडिंग्स यू नीड। कौन कौन सी? जैसे सब हेडिंग आपके केस में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की सब हेडिंग नहीं रिक्वायर्ड है तो आप लिखेंगे ही नहीं। अगर सपोज जस्ट इन केस आपके पास
कोई भी अचीवमेंट नहीं है तो वो कॉलम ही आप हटा देंगे, सब हेडिंग लिख के उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, प्लीज रिमेंबर। यस, हाँ पूछिए। एक्सक्यूज मी मैम। या प्लीज टेल मी, बताइए। What can I write in career objective? करियर ऑब्जेक्टिव, देखिए जैसे आपका करियर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसमें ये लिखेंगे कि आप यू वांट टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप क्या चाहते हैं। कई लोग लिख लेते हैं उसमें वी वांट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर आप चैलेंजिंग एनवायरनमेंट लिखेंगे तो आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो आप बहुत सारे, कम से कम 8-10 करियर ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ठीक है, नेट पे, और उसके बाद आप खुद की लैंग्वेज में ड्राफ्ट कीजिए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं और आपकी क्या स्किल्स है और क्या आप वहां परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका जॉब करने के पीछे, ये रेज्यूमे लिखने के पीछे, जॉब में अप्लाई करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मतलब होता है करियर ऑब्जेक्टिव का। देखिए मैं एज इट इज अगर आपको सेंटेंस बता दूंगी तो वो आप एज इट इज बिल्कुल भी मत लिखिएगा, क्योंकि वो मेरा बताया हुआ होगा, वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो यू कैन राइट दैट आई वांट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सच पोस्ट विद सच एंड सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है उसका। जब आप एक 10-15 करियर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे नेट पे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, बट इट शुड बी योर लैंग्वेज, आपकी ही खुद की भाषा होनी चाहिए, वो आपका खुद का करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बस उसको आप चेक करवा लीजिएगा आपके फैकल्टी मेंबर्स से कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक या कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ओके मैम। So yes, if you are graduating from a college, you don't have professional experience, so don't write that subheading, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चूज अप्रोप्रिएट मार्जिन्स, जो स्टैंडर्ड मार्जिन्स होती हैं आप उसको चूज कीजिएगा। बहुत ज्यादा साइड में वाइट स्पेस मत छोड़िए, जनरली 1.15 और 1.5 तक होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा मार्जिन बढ़ाने हैं तो इट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 2 इंचेस, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। Is it clear? Margins? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yeah, tell me. Ma'am, in profession, ma'am, what should be write in professional experience? देखिए मैं आपको भी ये बात पूरे 1.5 घंटे के सेशन में 5 बार बता चुकी हूँ कि आप लोग फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर के पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो होता है कि आपने कहीं जॉब किया हुआ है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं। अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ कहीं जॉब किया हुआ है, जॉब, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब आपने जॉब का एक्सपीरियंस है, तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ाई के साथ साथ कहीं जॉब भी किया है तो वो आएगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में वो आएगा, नहीं तो आप वो हेडिंग मत लिखिएगा, प्लीज रिमेंबर। देखिए स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं भी किसी भी टर्म का मीनिंग अगर आपको नहीं मालूम है आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज इस सेशन का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे आपने पूछा ना कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे क्या लिखना है, तो मैं इतनी बार अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने कहीं जॉब किया हुआ है, वर्क किया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है, लेकिन आप लोग कॉलेज के फ्रेशर्स हो तो आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो साथ साथ आपने किया तो आप लिख सकते हैं। रेस्ट ऑफ यू प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट। आप लोग, ये बेसिक वेबिनार के एटिकेट्स होते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर बार बार आप चेक करिए कि आपका माइक अनम्यूट तो नहीं हो गया है गलती से टच स्क्रीन से, क्योंकि फिर उससे डिस्टरबेंस होता है सेशन में। एंड प्लीज मेक श्योर कि अगर आप वीडियो कैमरा अपना ऑन करते हैं तो आप उस वक्त फॉर्मली प्रोफेशनली बैठे हैं। अगर आप फॉर्मली प्रोफेशनली नहीं बैठे हैं, कुछ और आप कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट स्विच ऑन योर वीडियो कैमरा, इट गिव्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन। ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं, ऑनलाइन एटिकेट्स होते हैं जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए।
I've already told you this, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ that उसको प्रूफ रीड कीजिए, पहले बैठ के पेंसिल प्रिंट बनाइए, उसका प्रिंट निकालिए, पेंसिल लेके बैठिए, एक एक चीज उसको ध्यान से वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक, एक भी ग्रामर एरर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। इससे ये पता चलता है, अगर आप कोई गलती करके देते हैं रेज्यूमे में, देखिए इससे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, दैट मीन्स आप अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है, दैट मीन्स आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप सीरियस नहीं है, आप बहुत कैजुअल हैं, इससे ये इंप्रेशंस जाते हैं, इतना ज्यादा इसके इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे जैसे अगर कोई भी फैकल्टी होगा तो अगर वो सामने उसको मिस्टेक्स दिखेंगे तो आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड। आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ ये बात। तो आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, आपके हाथ में, आपको ऑन द स्पॉट तो नहीं लिखना था कि गलती से मिस्टेक हो गई, आप पहले से ही उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? देखिए बहुत सारे जब आप ऑनलाइन जब कंप्यूटर पे आप जब बनाते हैं रेज्यूमे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेल चेकर होता है, ग्रामर चेकर होता है, पहले उससे चेक कर लीजिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कुछ छूट ना गया हो तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अपने फैकल्टी मेंबर से उसको चेक कराइए, अपने सीनियर्स से चेक कराइए, जिसको लगता है कि जिनकी लैंग्वेज करेक्ट है, जो कर सकते हैं। Please make sure your resume should be error free. Last but not the least, ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके रेज्यूमे में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ स्किल्स चेंज करनी है, करियर ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, तो उसको अलग बनाइए। ऐसा मत कीजिए कि आपने एक रेज्यूमे उठा करके बना लिया और आप वो सेम सब जगह आप फ्लोट कर रहे हैं, भले किसी भी टाइप का जॉब हो। तो इसमें थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए पड़ सकता है किसी एक्सपर्ट का कि इसमें क्या चेंजेस करें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अपना एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे सपोज मैं जैसे भी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार ले रही हूँ, वेबिनार ले रही हूँ, सेशन ले रही हूँ। आई टेक सेशंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो, कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड फॉर कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। सो जो मेरी लिस्ट ऑफ सेशंस हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़े डिफरेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स के हिसाब से डिफरेंट होंगे, और कॉर्पोरेट के हिसाब से, कॉर्पोरेट में तो मैं जो ऑलरेडी जो प्रोफेशनली जो जॉब कर रहे हैं उनको मैं थोड़ी रेज्यूमे राइटिंग का सेशन दूंगी, राइट? उनको क्या मैं ग्रुप डिस्कशन का सेशन दूंगी या इंग्लिश लैंग्वेज का? नहीं, उनके लिए हो सकता है सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, या आप स्ट्रेसफुल कैसे रहे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि उनको जॉब के बहुत प्रेशर्स रहते हैं। सो इट डिपेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है जॉब की। अगर जॉब की प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट है तो प्लीज मेक श्योर कि अपना रिज्यूमे फिर से रिव्यू करें, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी एक्सपर्ट या अपनी फैकल्टी मेंबर से इसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। हो सकता है अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा हो, आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं बिल्कुल। आई एम गिविंग यू गिव मी 30 seconds, जस्ट गिव मी 30 seconds, आई विल बी बैक इन 30 seconds। टिल द टाइम प्लीज see that which question you want to ask. Students, please be ready with your questions and ask all your questions one by one. Yes, students, I'm there and I'm really looking forward to listen to the questions. I would love to address the questions. आप लोग जितनी क्वेरीज पूछेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। Good afternoon, ma'am. Yes, tell me.
मैम जब हम रिज्यूमे का फॉर्मेट बनाते हैं तो वो जो फॉर्मेट है वो हम खुद से बनाएं या फिर जो वर्ड में पहले से प्रोवाइड किए जाते हैं उनको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको जो भी फॉर्मेट यूज करना, जो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स दिए होते हैं, बस मैंने आपसे कहा है कि बाद में आप उसको चेक कराएंगे, है ना। और स्ट्रक्चर मैंने आपको, लेकिन आपको इफ यू फील कि आप खुद ही अपना बना सकते हैं स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हैं, नहीं तो एल्स यू कैन टेक द यूज ऑफ द फॉर्मेट जो भी दिया है, बट जस्ट मेक श्योर वो आप उसको बनाइए, पूरे पॉइंटर्स पूरी इंफॉर्मेशन उसमें फिल इन कीजिए, उसका प्रिंट निकालिए और खुद उसको देखिए। आई एम टेलिंग यू 50% इफ नॉट मोर 50% तो आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा कि एक आप उसको जब एक लुक में देखेंगे कि इज इट क्लियर, उसमें कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं दिख रहा है, सिंपल है, रीडेबल है, क्लियर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। कई बार कई स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलम्स बना के कुछ कुछ लिखते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉर्मेट होना चाहिए उसका। आपको अगर वो फॉर्मेट रीडेबल, इंप्रेसिव, सिंपल दिखेगा तभी फिर सामने वाले फैकल्टी मेंबर को या इंटरव्यूअर को सिंपल दिखेगा। यू कैन ईदर यूज योर ओन फॉर्मेट और यू कैन टेक द स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स फ्रॉम द नेट ऑल्सो, not an issue. The only thing you make sure is it should not be complicated, it should be clear, readable, legible. That's there. Yes, looking forward for the next question. मनीषा जी एक क्वेश्चन मेरे एंड से। हाँ प्लीज सर, आई थिंक कई सारे डिफरेंट सेक्टर्स से हमारे यहाँ पे कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं, सो कुछ टिप्स अगर आपका एंड से मिल जाए फॉर कंपनी स्पेसिफिक रेज्यूमे। यस, देखिए कंपनी स्पेसिफिक रेज्यूमे आई टेल यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, प्लीज मेक श्योर कि आप नेट पे जाकर के, वेबसाइट पे जाकर के उस कंपनी का डिटेल्ड प्रोफाइल स्टडी करें, उसकी कब फॉर्म हुई, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, वैल्यूज वहां करके वो जरूर स्टडी करें, वो जरूर पढ़ें, ठीक है। और सपोज जैसे अगर आप किसी एक ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहां पर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर बेस्ड कंपनी है, तो आप ये जरूर देखें अगर आपका वो टारगेट है तो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड कोई स्किल होनी चाहिए, है ना, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या कंप्यूटर की लैंग्वेज या उसमें आपको डेफिनेटली होना चाहिए। Then, sir, Abhishek sir, I would like to say something here is that जो फॉर्मेट होता है CV का वो सेम होता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, क्वालिटीज हैं, वो डिफर करती हैं। सपोज अगर जैसे आपने मुझे बताया था कि एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी में, सो उनसे ये एक्सपेक्टेड होगा कि उनको एग्रीकल्चर रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें अगर कहीं ये हॉबी होगी कि उनको नेचर के बीच में अच्छा लगता है तो दैट वुड बी एन एड ऑन, दैट वुड बी ए सपोर्टिव थिंग। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेट तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होता है रिज्यूमे का। स्किल्स उसके हिसाब से डेफिनेटली रिज्यूमे के हिसाब से और बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज होती हैं। लेकिन हाँ, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जिस भी कंपनी के लिए आप जाते हैं उस कंपनी का डिटेल प्रोफाइल, वेबसाइट, उसकी वेबसाइट आप जरूर स्टडी कीजिए, वहां के ऑर्गेनाइजेशन कब बना, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनके यहाँ उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, उनकी कोर वैल्यूज क्या हैं, वो किस किस सेक्टर में काम करते हैं, कहाँ कहाँ उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन उसके हेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन है उनकी HR वैल्यूज क्या है। और सबसे अच्छी बात, जो सबसे अच्छा होमवर्क आप लोग कर सकते हैं वो ये कि उस कंपनी में ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है, अगर आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं तो वो सबसे वैल्यूएबल इनपुट होता है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, रिज्यूमे के लिए। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। My question is, during the interview and you fail to answer the questions which the interviewer is asking you, doesn't it demarcate you or devalue you? Look, if you are not able to answer any question, it's okay. Simply say, sorry sir, I don't know. Even if the interviewer is devaluing you, okay, you cannot do anything about it because you don't know the answer. You need to wait for your turn. You need to wait for the question which you can answer, the question which you know. So what you need to do is that time, don't get nervous. Just maintain your confidence. It's okay if you don't know the question.
Though you have to prepare beforehand, it should not happen that you should not know a lot of questions consecutively. But if you don't know the questions, simply say, sorry, I don't know. But don't try to give false answers. Don't try to guess or speculate the answer if you're not sure. But maintain your confidence. Don't get nervous and wait for the right opportunity, right time for the right question, which you know the answer of. And when you are faced with that particular question, which you know the answer of, please be very confident and assertive and then answer. By this method, it will be proved that you didn't get nervous during the adverse condition, during the tough times. This is the best you can do. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, you're welcome. Ma'am. Yes, tell me, बताइए. Hello. हाँ बताइए, I can hear you. आपकी आवाज आ रही है, बताइए. मैम जो हमको मैम थोड़ा इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है मैम. ओके. क्योंकि तो फिर आपको इंग्लिश समझना तो आता है ना? आपको कुछ सेशन समझ में आया कि मैंने बहुत सारी इंग्लिश बोली? नो मैम, जो वो देखिए हम लिख लेते हैं, कोई बोलता है तो अच्छे से समझ भी लेते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते अच्छे से. ठीक है. तो आप कहाँ रहते हैं, मुझे पहले ये बताइए, कहाँ रहते हैं आप? मैम वही तो दिक्कत है, बिहार में रहते हैं, यहाँ कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है. नहीं बोलता. आई अंडरस्टैंड दैट. तो देखिए, अभी मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ये बताइए. डिप्लोमा सिविल. डिप्लोमा सिविल कर रहे हैं. देखिए मैं आपको यही बोलूंगी, क्या नाम है आपका? रोहन कुमार मैम. रोहन कुमार. हाँ रोहन कुमार जी, मैं आपको यही बोलूंगी. अच्छा, शायद आपने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था हॉबी के लिए, राइट? सेम कैंडिडेट हैं आप, है ना? जब आपने मुझसे कहा था कि हिंदी में बोलिए. अच्छा ठीक है रोहन कुमार, देखिए मैं आपसे यही बोलूंगी, ये हमारे इंडिया की बहुत सारे जनता की ये कॉमन प्रॉब्लम है. तो अगर आप कोई ऐसा करियर चूज कर रहे हैं जिसमें आगे जाकर के आपको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अगर है, तो आपको सीखनी ही पड़ेगी. यू विल हैव टू लर्न इट. लेकिन कैसे सीखेंगे? कि आप कहीं ऐसे सिटीज में जाइए कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए. देखिए जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप भोपाल में भी आ सकते हैं, या आप बिहार के ही किसी सिटी में अगर रहेंगे, हर सिटी में स्पोकन इंग्लिश कोर्स सेंटर्स होते हैं. ठीक है, वो आपको कुछ महीने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आप वहां कराते क्या है स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स में, कि बस सब बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं और उनको बोला जाता है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, गलत या सही. और जो फैकल्टी मेंबर, जो टीचर होती हैं, उनको करेक्ट करती हैं. लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं अभी, तो आप क्या कीजिए, खुद से एफर्ट लेना स्टार्ट कीजिए. आप ऑनलाइन ढूंढिए जिसमें छोटे छोटे से वीडियो क्लिपिंग आते हैं, बहुत बेसिक, जो छोटे बच्चों के होते हैं. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. जो छोटे बच्चों के लिए सिंपल वीडियोस होते हैं इंग्लिश स्पोकन के लिए, वो सुनना स्टार्ट कीजिए. आप इंग्लिश में मूवीज देखना स्टार्ट कीजिए जिसमें सबटाइटल्स इंग्लिश में लिखे हों, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा. हाँ जी बोलिए. मैम एक जो टीचर थे उनसे फिर पूछे कि सर अपना इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो वो बोले कि अपने आसपास में लोगों से इंग्लिश बोलो. तो मैम जाके बोले, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही, गलत बात नहीं बोली. तो मैम हमको सब ओवर स्मार्ट समझने लगा. मतलब वो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता. वो मतलब कि मेरा मजाक भी उड़ाने लगे. ठीक है, तो अगर आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, आसपास आपके माहौल नहीं है बोलने के लिए, तो आप क्या कीजिए, आप अपने कुछ समय अपने आप के साथ स्पेंड कीजिए, अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और कुछ चीजें इंग्लिश में लिखिए. जैसे दिन भर आपका दिन कैसे गया, या आज का सेशन कैसा रहा, या किसी भी बारे में उसको लिखिए और जोर जोर से पढ़िए. अकेले में पढ़िए, मिरर के सामने खड़े होकर के पढ़िए. आपके मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर होगा, उसमें आप रिकॉर्ड कीजिए इंग्लिश में सेंटेंसेस, उसको सुनिए. इंग्लिश में मूवीज देखिए, बच्चों की मूवीज देखिए, एनिमेटेड मूवीज देखिए, कुंग फू पांडा देखिए, टॉम एंड जेरी देखिए. आप कोई ऐसी मूवीज देखिए जो आपको समझ में आए. वो इंग्लिश में नीचे उसके सबटाइटल्स लिखे होंगे, आप उसको पॉज कर करके बात देखिए. इसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ये आपका करियर है, आपकी लाइफ है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप इंप्रूव करें. तो बहुत सारी सिंपल जो इंग्लिश की सीरीज आती हैं वो देखिए, सबटाइटल्स ऑन करके देखिए, और उसको बार बार आप पॉज करके रिवाइंड करके कर सकते हैं. इससे लॉन्ग टर्म में, मैं नहीं कह रही हूँ बहुत जल्दी हो जाएगा, इट विल टेक फ्यू मंथ्स, थोड़े महीने लगेंगे, लेकिन आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. ये आप तब तक कीजिए जब तक आप बिहार में हैं, अपने घर में हैं, और आप कहीं जाकर के बाहर आपको माहौल नहीं मिल रहा है.
एक बार आपको जाके बाहर माहौल मिलेगा तो आपको बोलना ही पड़ेगा। देखिए स्विमिंग है, जैसे स्विमिंग है, तैराकी है, ठीक है ना। अगर आपको कोई ये बोले कि आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लीजिए, ट्यूब ले लीजिए, एक स्विमिंग पूल की मेंबरशिप ले लीजिए, स्विमिंग पूल चले जाइए और वहां बैठ करके पानी में पैर डाल के बैठे रहिए, आप जाइए, आप स्विमिंग सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। कब तक नहीं सीख पाएंगे? जब तक आप पानी में जंप नहीं करेंगे, जब तक हाथ पांव नहीं मारेंगे। वैसे ही इंग्लिश के साथ है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप बोलना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि आपके आसपास एनवायरनमेंट नहीं है, माहौल नहीं है, तो अभी आप थोड़ा बहुत अपने आप से बोलिए, कुछ एक दो ऐसे फ्रेंड्स को फोन कर लिया कीजिए जिनसे आप थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करते हैं, कर सकते हैं। जूम कॉल की है, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको सर्च कीजिए। लेकिन बहुत कोई महंगा कोर्स मत ज्वाइन कीजिएगा, बहुत महंगी फीस वाला, क्योंकि आपको पता नहीं होगा पहले से आप उसमें कितना सीख पाएंगे नहीं। कोई शॉर्ट टर्म जैसे डेमो क्लासेस मिल रही है, ट्रायल क्लासेस मिल रही है, कम पैसों की आपको कहीं ऑनलाइन क्लास मिल रही है, वो ट्राई करके देखिए। देखिए आपको मैं 10 चीजें, 10 पॉइंटर्स बता सकती हूँ, आप सब कीजिए। ऐसे फ्रेंड को फोन लगाइए जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए। जूम कॉल पे बात कर सकते हैं, सब आप बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप सब कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे कोर्स ढूंढिए जिसमें आपको कम से कम फी में थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिले, फिर आपको पता चल जाए कि हाँ ये कोर्स अगर मेरे यूजफुल है तो उसकी फीस पे कीजिए। डेमो क्लास भी अवेलेबल होती है। मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कीजिए, वॉइस रिकॉर्ड कीजिए फोन पे। 5th पॉइंट। 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। आप सीखते वही हैं जो आप सुनते हैं, तो आप ऐसी टीवी सीरियल्स या ऐसी मूवीज देखिए इंग्लिश में सिंपल, जिसमें नीचे सबटाइटल्स आते हैं इंग्लिश में, उसको पॉज कर करके बार बार रिपीट करके पढ़िए, सुनिए। आपको शुरू में हो सकता है 25% समझ में आए, लेकिन मैं मूवीज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप न्यूज चैनल सुनिए, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाता है। मूवीज क्यों मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट इंटरेस्टिंग रहती है वो थोड़ा, ठीक है। जैसे कुंफू पांडा मूवी आप पार्ट 1 ले लीजिए, उसको देख डालिए 10 बार। आपको अगर 50% इंग्लिश नहीं आ जाए तो आप बोलिएगा। ऐसे कार्स मूवी है जो बच्चों की मूवीज हैं, जूटोपिया है मूवी, या आप नाम लिख लीजिए, जूटोपिया, कार्स, ये बच्चों की मूवी है। मैं आपको अपनी बेटी की मूवीज बता रही हूँ जो वो देखती है, 10 इयर्स की डॉटर है, लेकिन वो मूवी मैं भी साथ में एंजॉय करती हूँ, बड़ों को भी वो अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं अच्छी लगेंगी। सबटाइटल्स के साथ ऑन कीजिए एंड उसको बार बार रिवाइंड करके सुनिए, पढ़िए उसमें, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप इंप्रूव भी करेंगे। तो ये सारी टिप्स आप कुछ मंथ्स तक बिना गिव अप किए, बिना हार माने फॉलो कीजिए, तो आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा। दिस इज व्हाट आई कैन से। इंटरव्यू में बहुत काम आता है मैम। बिल्कुल, इंटरव्यू, इसके बगैर आप इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। देखिए टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह हैं, टेक्निकल स्किल्स आप इंजीनियर्स के पास बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश नहीं है तो आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाएंगे। ये रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैंने बोला आपसे कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ हमारी इंडिया की जो भाषा है, हमारी भारत की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, वो हमें हिंदी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मैं पूरी हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ, और हिंदी पे भी उतना ही मेरा पकड़ है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है करियर की तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। थैंक यू मैम। मैम बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन आई गिव द आंसर इन इंटरव्यू इन हिंदी? ये तो वही बात हो गई, मैंने यही चीज अभी आपको एक्सप्लेन करी। अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं, वो आपसे वहां इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप हिंदी में कैसे जवाब देंगे बताइए मुझे। अब सपोज इमेजिन कीजिए, अभी सर ने मुझे बोला, अभिषेक सर ने, कि मैम आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लीजिएगा, और सपोज मुझे हिंदी नहीं आती और मैं पूरा सेशन आपको इंग्लिश में दिए जा रही हूँ और आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या पर्पस होता उस सेशन का? जहां नीड है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जहां नीड होती है वहां में इंग्लिश में आपको बोलना है, जहां नीड है वहां हिंदी में बोलना है। तो आपको, अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं कहीं जहां इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आंसर्स देने पड़ेंगे, सीखनी पड़ेगी। और कैसे सीखेंगे वो भी मैंने सारे टिप्स बताए। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू रेज्यूमे राइटिंग? सीवी सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? मैंने इसीलिए, देखिए सिंस ये वेबिनार था, इसलिए मैंने, सिंस मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कितने उससे सुन रहे हैं, क्या पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। जब स्टूडेंट सामने होते हैं ऑफलाइन, तब सेशन का इम्पैक्ट अलग ही होता है। दैट्स वाई मैंने पहले आपको पूरा समझाया, फिर पीपीटी में भी पूरे पॉइंटर्स रिवाइज करवाए, सो दैट कोई पॉइंट मिस नहीं हो, बार बार आप लोगों को रिवाइज कराए। स्टिल आपको लगता है कि कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम, while interview,
हाँ जी. While interviewer asks question like define your strength and weakness, which is difficult to answer this question. How can we prepare such question before interview? आपका मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई हूँ, मुझे फिर से आप समझाएंगे प्लीज. Ma'am, why interviewer ask question like define your strength and weakness at same time, which is difficult to answer this question. How can we prepare such question before interview? देखिए, एक तो आपके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस बहुत था. ये जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, ये मैंने ऑलरेडी अपने सेशन में एक्सप्लेन किया है. क्या आप यही पूछना चाहते हैं कि जब हमसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो हम कैसे आंसर करेंगे? क्या आप यही पूछना चाहते हैं? एट द सेम टाइम पूछता है कि जैसे वीकनेस क्या है आपका. सेम टाइम पूछता है. ओके, सेम टाइम कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस एंड इस तरीके से. तो आप एक एक करके रिप्लाई कीजिए. आप टर्न बाय टर्न बिना नर्वस हुए. कई बार ऐसा होता है इंटरव्यूज में, ये सारे पॉइंटर्स में इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले सेशन में डिस्कस करने वाली थी, लेकिन सिंस आपने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ. कई बार वो लोग स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बम्बार्ड करते हैं एक साथ, तो आप वन बाय वन करके आंसर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइम, आप यही पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो एक साथ पूछते हैं तो हमें आंसर कैसे करना है? यस मैम. ओके, गॉट इट. सिंस आपने क्या ये एक ही इंग्लिश में आपने बोला और ये जो है क्वेश्चन कहीं से आप रीड करके बोल रहे. देखिए, मुझे आप भी ना आपका चेहरा दिख रहा है मुझे, और ना मैंने आपको एक बार भी देखा है सेशन में, बट आई कैन टेल यू कि ये आंसर क्वेश्चन आपने नेट से उठाया है और मुझसे क्वेश्चन पूछा है, जिसका मीनिंग ही आपको नहीं समझ में आ रहा था. तो ये क्वेश्चन आपने खुद फ्रेम किया है, खुद क्वेश्चन लिखा है आपने ये? यस मैम. ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपने खुद लिखा है तो. अगर एट द सेम टाइम क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स इंटरव्यूअर पूछते हैं तो टेक अ पॉज, वन बाय वन. पहले स्ट्रेंथ बताइए, फिर वीकनेस बताइए, और टर्न बाय टर्न. बस वहां पे पर्पस ये कि आप नर्वस मत होइए. थैंक यू. यू आर वेलकम. और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स और कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम. हाँ, बताइए. गुड आफ्टरनून मैम. मैम, व्हाट आर द पॉइंट दैट शुड नॉट बी मिस्ड इन रिज्यूम? व्हाट आर दोस पॉइंटर्स वी शुड नॉट बी मेंशन्ड? देखिए, जितने मैंने पॉइंटर्स अभी आपको बताए ना, उसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. वीकनेस नहीं लिखना है, बाकी मैंने आपको पूरे पॉइंटर्स बता दिए क्या क्या लिखना है. नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, फॉलोड बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, seminars, workshops, achievements, extracurricular activities, then strengths, hobbies, then personal information. That's it. मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन से पॉइंट्स होते हैं जो रिज्यूम में मिस्ड नहीं होने चाहिए? मिस नहीं होने चाहिए, यही जितने मैंने रिपीट किए ना, ये 10 पॉइंटर्स बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए. सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ठीक है. फिर करियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इंटर्नशिप्स आपने करी हैं तो, इंडस्ट्री विजिट्स, प्रोजेक्ट्स आपका, उसके बाद आ जाएंगी अचीवमेंट्स, फिर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, और उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स. देखिए, मैंने सारे बोले, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल क्वालिफिकेशन. अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं तो आप हेडिंग ही हटा देंगे. ये सारी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए बेटा. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, वेलकम. हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है. स्पीक लाउडली. नॉट एबल टू हियर यू. आपका माइक पास पे लाके बोलिए. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. Sorry, I'm not able to hear you. If anyone else is able to hear, then फिर से बोलिए. Let me try. आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है. मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ. हाँ, जोर से बोलिए. हेलो के बाद जोर से बोलिए. जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था.
क्या पूछना चाह रहे हैं? जोर से बोलिए, बहुत और जोर से बोलिए, नहीं सुनाई पड़ रहा है। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पर आगे, सॉरी, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे? We will discuss that in the session of interview preparation. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे do's and don'ts हैं. This was the session of resume writing, लेकिन resume writing के साथ साथ इंटरव्यू भी एसोसिएटेड था, क्योंकि resume से देख करके ही इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स इंटरव्यू के भी कवर किए कि आप रेज्यूमे वही चीज लिखिए जो आप इंटरव्यू में आंसर दे सकते हैं. अभी इट्स ऑलरेडी 1 o'clock, हम लोग अलग से सेशन 2 hours का इंटरव्यू में लेंगे इंटरव्यू का, तो उसमें पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. थैंक यू मैम. You're welcome. सीवी रिलेटेड किसी को और कोई क्वेरी आ रही है? ध्यान रखिए बेटा, अब आप नेक्स्ट अपना टारगेट यही कीजिए कि अपना सीवी बनाइए घर पे बैठ करके, ठीक है? उसका प्रिंट निकालिए, उसको स्टडी कीजिए, देखिए. और आप अगर जैसे आपको तभी समझ में आ जाएगा जो प्रॉब्लम्स आएंगी. अगर आपको हॉबीज लिखने में दिक्कत जा रही है, दैट मीन्स आप मुझे अपनी हॉबी कल्टिवेट करनी है, डेवलप करनी है. और जो भी आप हॉबी लिखें उसके ऊपर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं हॉबी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस वो मुझसे पूछ सकते हैं. वैसे ही आपके स्ट्रेंथ रिलेटेड है, तो प्रिपरेशन अभी एक बार बनाइए, उसको, उसकी तैयारी अभी से शुरू करिए. मेरा यही सजेशन है आप लोगों को, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है बहुत. मनीष मैडम, आई थिंक सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं और स्टूडेंट्स के पास अभी ऐसा कोई डाउट्स नहीं है, सो वी कैन फिनिश एंड एंड द सेशन. And thank you all of you. Thank you Manisha ji for sharing all the insight on resume writing. And tomorrow we have the another session from madam का जो अलग session रहेगा body language पर. Yes. So thank you all of you. Thank you students. And tomorrow at same time we will start with the second session. बिल्कुल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे. दैट मीन्स आप लोग सब ध्यान से सुन रहे थे. एंड आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, आप लोगों की हेल्प होगी इसमें. टुमारो जो सेशन है उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी बॉडी लैंग्वेज, मतलब उसमें मैं कल ये कवर करूंगी कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए, आपके शोल्डर्स कैसे रहने चाहिए, आपका फेस कैसे रहना चाहिए, आपका नेक कैसा होना चाहिए, आपके हैंड्स कैसे होने चाहिए. इस सब की मैं आपको एक एक फोटो दिखाऊंगी स्लाइड पे. पूरा कल जो है हेवीली बेस्ड ऑन पीपीटी होगा, और कैसे बैठते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस मत कीजिएगा एंड बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे हेड. आप लोग लर्न करते रहिए, अपनी पर्सनालिटी में इन्वेस्ट करती रहिए. हैप्पी लर्निंग मेरा हमेशा पार्टिंग नोट यही रहता है स्टूडेंट्स को. हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग. Okay, all the best to all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.